I welcome you all in exam focus revision sessions May 2023. Today we are conducting a session on CFAP 3 strategy and performance measurement. The timing of today's session would be from 6 p.m. to 9:30 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar, and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. The link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Irfan Qadir with us for this session. Mr. Irfan Qadir is a renowned teacher in CA fraternity. He has more than 37 years of teaching experience. He has done MS in Strategic Financial Management and MCom Finance with gold medal from University of the Punjab. He is affiliated with various professional accounting bodies, universities, and banks. He is currently associated with one of RAT at Lahore. He also served as Dean of Management Sciences and was responsible for the overall academic affairs of a renowned university. His area of interest are accounting and finance, and the subjects that he has taught includes financial management, corporate finance, budgeting and forecasting, investment analysis, advanced financial management, international finance, financial accounting, and management accounting. He is teacher of many teachers who are currently teaching various subjects of CA fraternity. Please welcome Mr. Irfan Qadir. Assalamu alaikum, everyone. Let me start sharing that. Thank you very much for your comments. It's an honor to be present at ICAP and conduct this revision classes. I hope the last two sessions have been beneficial enough for the students. My basic purpose has been that rather than going through the text only, I should pass on this skill of how to handle the question paper. As I said in my first session, right at the start, SPM एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे नजदीक स्टूडेंट अपनी नॉलेज से नहीं बल्कि एग्जामिनेशन स्किल की वजह से इश्यूज में आता है। तो कोशिश यही है कि इस मुख्तसर से टाइम में जितने क्वेश्चंस, केस स्टडीज, हम सिनेरियोस कवर कर सके, उस स्किल को स्टूडेंट तक पास ऑन किया जाए। मैंने पहले भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हम क्लास में क्वेश्चंस रिव्यू कर रहे हैं और जो ऑनलाइन हैं, वो उन क्वेश्चंस को हल करें और उनको चेक करवाएं। बिकॉज सिर्फ सॉल्यूशन को पढ़ना हल नहीं है, पढ़ के उसको लिखना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस को हल करें और उनकी सबमिशंस करें ताकि चेक करके हम उसको फीडबैक दे सकें।
तो सारी रोड कंडीशंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं आई केप्ट फिजिकली ऑफिस पे नहीं पहुंच सका, सो आई एम ऑनलाइन. Hopefully the things will be better and I'll be there physically to conduct the session. मैं वहीं से बात को शुरू कर रहा हूं जहां से हमने कल खत्म किया था. हम समर 21 का पेपर कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 पर बात छोड़ी थी. और क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर आप फोकस करें एक दफा फिर, तो यहाँ एक रिजॉर्ट की बात की जा रही है जहां पर के 3 होटल्स ने अपने काम को शुरू किया है. प्रीमियर होटल, स्टार होटल और नीला पानी. प्रीमियर होटल अपने कस्टमर्स को चार्ज कर रहा है 10,000 रुपीज पर डे. स्टार होटल चार्ज कर रहा है 3,000 रुपीज पर डे, जबकि नीला पानी इज चार्जिंग 800 रुपीज पर डे. एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 3 दिन काफी हैं इस रिजॉर्ट पर स्टे के लिए. इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है 2,000 रुपीज ईच, लाइक बोटिंग, हाइकिंग, हॉर्सबैक राइडिंग. इस वक्त पोजीशन ये है कि ये जो रिजॉर्ट है यहाँ पर पहुंचने के लिए, in addition to stay at the hotel, the customers have to incur an additional cost for hiring a vehicle to get to their destination. And there are 2 options. One is they can hire Toyota GLI, and the second is Toyota Prado, and the cost is rupees 10,000 and 3,000 rupees respectively. इसके बाद यहां पर बताया गया कि एक टूर ऑपरेटर है विच इज हॉलिडे ट्रेवल्स. उसने यहाँ पर मार्केट रिसर्च शुरू की है और वो यहाँ पर कुछ वीकेंड पैकेजेस लॉन्च करना चाहता है. उसकी रिसर्च के मुताबिक उसके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी 3 पैकेजेस ऑफर किए हुए हैं और ये जो पार्ट ए है इसमें इसका अहम रोल होगा. उसमें प्रीमियर होटल का जो पैकेज है आपके सामने है 70,000 रुपीज, दैट इज फॉर 3 days. Then 30,000 for the star hotel with Toyota GLI and 14,000 for Neela Pani with Toyota GLI. इन पैकेजेस के साथ जो हॉलिडे ट्रेवल्स टूर ऑपरेटर है वो 3 दिन का पैकेज ऑफर करना चाह रहा है और उसका टारगेट है minimum 20% profit on each package. These are the packages which are available, which are offered by his competitors, and he wants to launch a 3-day weekend package with a minimum profit of 20%. अब आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं. The question reads as, provide all the 4-person package options possible with respect to hotel and vehicle type and highlight the gaps in the market. आपके सामने एक टेबल पर आइडेंटिफाई हुआ है, मैं जहाँ टिक कर रहा हूं ये वो है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जो अभी मैंने आपको यहां पर आइडेंटिफाई किया. दीज आर ऑलरेडी देयर. यहां पर अब जो गैप है, ऑलरेडी प्रीमियर होटल में with Toyota Prado is available, so there is a gap of premier hotel with Toyota GLI.
ये जो इस वक्त हम गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं पार्ट 2 में इसका अहम रोल होगा। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि स्टार होटल रूम और Toyota GLI package is already available. So there is a gap of Star Hotel and Toyota Prado. Similarly for Nilapani in-room with Toyota GLI return is already offered by the competitors. So there is a room available for Nilapani in-room and Toyota Prado. एक्चुअली इस सवाल की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो उसने तीनों कैटेगरीज में हमें एक एक जगह पर गैप आइडेंटिफाई कर दिया है। इसकी अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैकेजेस के 3 मार्क्स हैं। ये एक्चुअली ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं दीज आर 3 marks, so it's almost about 0.5 each. And highlighting the gap from these identified packages will carry 1 mark. So जब हमने ये 6 packages identify कर दिए तो we got this 3 marks, and identifying these gaps will give us 1 mark. अब आइए देखें इसका पार्ट बी हमें क्या कह रहा है। Recommend the most appropriate package option for each hotel room and suggest possible porters competitive strategies for it. तो आइए पहले जरा थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये पोर्टर्स कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज कौन सी थी। माइकल पोर्टर के मुताबिक there are 2 basic competitive strategies. One is cost leadership strategy. And please do not confuse low cost with cost leadership. Beta, cost leadership strategy है a company's ability to produce a product at a cost less than its competitors. तो पोर्टर के मुताबिक पहला तरीका कंपीट करने का है दैट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। लो कॉस्ट का हरगिज ये मानी नहीं है कि आप कॉस्ट लीडर भी होंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी पोर्टर ने जो आइडेंटिफाई की दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, दैट इज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। So cost leadership is to produce a product at a cost less than your competitor. And differentiation is to produce a product different from your competitors. इसके बाद माइकल पोर्टर ने आइडेंटिफाई किया कि we can have a focused strategy and we can have broad-based strategy. यानी कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फोकस्ड भी हो सकती है और ब्रॉड बेस्ड भी हो सकती है। इसी तरह डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फोकस्ड भी हो सकती है और ब्रॉड बेस्ड भी हो सकती है। बेटा, जब हम कहते हैं फोकस स्ट्रेटेजी तो फोकस स्ट्रेटेजी का मतलब है प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट to a selected small segment of market. Sometimes we may also refer it as a niche market. So focus strategy is where we are producing and selling our product for a selected small group of investors. जबकि broad based strategy है where we are producing and selling to the multiple segments. अगर आप बाटा को रिव्यू करें तो बाटा is into broad-based strategy. It is producing shoes for menswear, women wear, children wear, sports wear.
लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बड़ी फोकस स्ट्रेटेजी पर है, लाइक ECS, एहसान चप्पल. They are producing and selling only for women footwear. So Michael Porter के मुताबिक, broadly speaking, you have cost leadership or you can have differentiation. Then later you can decide that would you like to go for focused cost leadership or broad-based cost leadership. Similarly, for differentiation, you have to decide whether you want to go for focused differentiation or broad-based differentiation. अब मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कंपैटिटिव स्ट्रेटजी कौन सी है. अब यहां जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं. It is 1 mark each for each package discussion. अभी आपने देखा कि हमने यहां 6 पैकेजेस आइडेंटिफाई किए हैं. Discussing each with respect to what? Which one is most appropriate or otherwise? And which competitive strategy would you like to suggest if it is appropriate? Then you have 0.5 marks for each hotel recommendation. That will take you to 1, 2. For example, आपके पास ये जो ऑप्शन अवेलेबल है प्रीमियर होटल के लिए, इसमें से आप किसको रिकमेंड करते हैं? इसी तरह स्टार होटल और नीला पानी इन रूम के लिए. And then 1 mark each for each on Porter's strategy. कि जो भी आपके पास पैकेजेस हैं, इसमें आप क्या कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना चाहेंगे या डिफरेंशिएशन की तरफ जाना चाहेंगे. और अगर पॉसिबल हो तो रिफ्लेक्ट कर दें कि आप इसमें फोकस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे या ब्रॉड बेस के साथ जाएंगे. So have you hope you understand where are the marks? और verb देखिए बेटा यहाँ क्या यूज किया गया है? That is to recommend and then to suggest. So we have to recommend the most appropriate package, and then we have to suggest where we need not to be very conclusive, but suggestive is we have to suggest the competitive strategy for each package. अब आइए पहले बात करते हैं प्रीमियर होटल की. ये सरसी सी कल बात हुई. Premier Hotel is charging about 10,000 rupees per day. So that will take them to a room cost of 30,000 to the customer. And then the package 1 is with Toyota Prado, which is going to cost them another 35,000. So that means the cost is 65,000. अब अगर 65,000 कॉस्ट है तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो हमारा जो कंपेटिटर है वो उसको चार्ज कर रहा है at 70,000. तो इसका मतलब यहां पर बड़ा सिंपल सा है कि 65,000 कॉस्ट है, चार्ज 70,000 कर रहा है वो. That means his profit margin is less than 20%, which is one of the objectives of holiday travels to enter into this market. अब अगर हम यहां पर प्रीमियर होटल की बात करें तो प्रीमियर होटल में 10,000 रुपीज पर है. इसकी यहां जो स्ट्रैटेजी है दैट इज श्योरली डिफरेंशिएशन. और जो डिफरेंशिएशन का कस्टमर होता है बेटा वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं होता ज्यादा. इसका जो पहला पैकेज है दैट इज प्रीमियर होटल विद Toyota Prado is going to be the choice of the elite class because they can afford. तो जहां तक पैकेज 1 की बात है जो कि ऑलरेडी है, this is probably the choice of the customer. इसके बाद जो गैप है यहां पर that is प्रीमियर होटल एंड Toyota GLI. ये जो गैप है इसका डिफरेंस प्राइस का काफी हो जाएगा because GLI is to cost them
only 10,000 rupees as against 35,000 rupees for Prado. तो यहां अगर मैं इस पैकेज 2 को इवैल्यूएट करूं तो शायद ये हमारे कस्टमर की प्रेफरेंस ना हो, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है प्रीमियर होटल का वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है, वो क्वालिटी कॉन्शियस है, डिफरेंशिएशन को का कस्टमर है। इसलिए शायद वो ये जो शायद नहीं वो ये जो पैकेज है 2 इसको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रीमियर होटल की मुनासबत से बात करें तो प्रोबेबली पैकेज 1 इज रिकमेंडेड। अब अगर मैं मार्क्स शीट में फिर जाऊं, हमने पैकेजेस आइडेंटिफाई कर दिए, इसके बाद हमने 0.5 फॉर ईच होटल रिकमेंडेशन। अभी हमने यहां पर यही रेकमेंड किया कि प्रीमियर होटल के लिए हमारी रिकमेंडेशन क्या है। अब आइए इसको जरा कंपेटिटिव स्ट्रेटजी पर देख रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन है तो श्योरली यहां पर डिफरेंट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, वो रिकमेंडेड नहीं है। हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारा जो कंपेटिटर है जिसकी लागत 65,000 है, 65 कैसे हमने कैलकुलेट किया था, 10,000 ईच फॉर 3 days, दैट इज 30,000 प्लस द रेंट फॉर प्राडो 35,000, सो द टोटल कॉस्ट इज 65,000। और 65,000 कॉस्ट पर वो 5,000 प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करके, जो कि 20% से कम है, दे आर चार्जिंग द कस्टमर फॉर 70,000 रुपीज। अब अगर एचटी इस मार्केट में आना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इसके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करे, क्योंकि ये कस्टमर डिफरेंशिएशन का कस्टमर है। एंड वन ऑफ द पॉसिबल डिफरेंशिएशन कुड बी कि वो जो फैसिलिटीज अवेलेबल है लाइक बोटिंग, हाइकिंग, हॉर्सबैक राइडिंग, उसको अपने पैकेज में शामिल कर। बेटा हमने यहां पर प्रीमियर होटल के लिए जो दोनों पैकेजेस थे उनको रिव्यू कर लिया। हमने कहा पैकेज 1 इज रिकमेंडेड, पैकेज 2 is not recommended as the customer is not cost conscious, he is quality conscious, so he may not accept this Toyota GLI। फिर हमने इसको पोर्टर्स कंपैरेटिव स्ट्रेटजी पर देखा तो हमने देखा कि यहाँ कॉस्ट लीडरशिप नहीं चल सकती, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी चलेगी। और हमारा जो कंपेटिटर है वो 65,000 की कॉस्ट पर 20% से कम प्रॉफिट चार्ज करके उसको सेल कर रहा है एट 70,000। अब आइए हम दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं, दैट इज स्टार होटल पैकेज। और स्टार होटल पैकेज को अगर आप देखें, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस पर फोकस कीजिएगा। तो स्टार होटल में ऑलरेडी जो ऑफर किया जा रहा है दैट इज स्टार होटल विथ टोयोटा GLI, और गैप अवेलेबल है स्टार होटल टोयोटा प्राडो। ये जो कस्टमर है ये पे कर रहा है 3,000 रुपीज पर डे। इट्स सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी दैट इज लो कॉस्ट विथ सम डिफरेंशिएशन। यहां जो हमारा कंपेटिटर है उसकी कॉस्ट जो है वो है 10,000 रुपीज, 3,000 रुपीज पर डे से 9,000। 10,000 वो गाड़ी का पे कर रहे हैं तो दे कॉस्ट इज 19,000, और वो इसको सेल कर रहे हैं इस पैकेज को एट, अगर आप डेटा से देखें, एट 30,000। तो इसका मतलब है इस कैटेगरी में हमारा कंपेटिटर है, उसकी कॉस्ट, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारे 20% से ज्यादा है इस वक्त। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि यहां जो हमारा कंपेटिटर है उसकी 19,000 कॉस्ट है, दैट इज 3,000 ईच, एंड देन they are paying 10,000 rupees
as the rent for the car. So that takes him to 19,000. इस 19,000 पर को वो sell कर रहे हैं at 30%. So their profit margin is more than 20%. तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो पैकेज यहां पर रिकमेंडेड है वो probably पैकेज 4 है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। क्योंकि टोयोटा प्राडो के साथ इसकी कॉस्ट में कंसिडरेबल इंक्रीज आ जाएगा। ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, हमें इसके लिए एक एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करवाने की जरूरत है। ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूं ये हमें यहां पर लिखना भी है। मैं फिर इसको स्टेप वाइज देता हूं। स्टार होटल के लिए जहां मैंने अभी टिक किया है ये पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है, और हमने अभी कैलकुलेशंस के थ्रू देखा कि हमारा जो कंपेटिटर प्राइस चार्ज कर रहा है इसके लिए 30,000, वो 20% मार्जिन से ज्यादा पे चार्ज कर रहा है। सो देयर इज अ रूम। अगर मैं कहूं पैकेज 3 को विद टोयोटा प्राडो तो ये कॉस्ट सब्सटैंशियली इंक्रीज होकर 45,000 पर चली जाएगी। Okay, 45 नहीं, that will take 35 and 9, that is 44,000. To 44,000 or 19,000, there's a big difference. तो यहां अगर हमने रिकमेंड करना है तो हमारी जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है यहां पर वो वही है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज स्टार होटल रूम विद टोयोटा GLI ट्रांसपोर्ट। अब अगर मैं इसको कंपेटिटिव स्ट्रेटजी पर देखूं तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी। हमारे पास इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है, मैंने अब गौर से सुनना है, 19,000 कॉस्ट है, और अगर मैं इस पे 20% प्रॉफिट मार्जिन करूं तो आई कैन सेल दिस पैकेज एट 22,800। हमारा कंपेटिटर इस वक्त इसके लिए चार्ज कर रहा है 30,000। So we can offer it at a low cost, लेकिन डर ये है कि यहां पर एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। If we bring it down, our competitor, which is already there in the market, will respond. और यहां पर एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, which may not be good for both the participants. अब इसके साथ भी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की जा सकती है। हमने ये ऑलरेडी कह दिया कि पैकेज 4 एक्सेप्टेबल है। इसके साथ हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लॉन्च कर सकते हैं बाय एडिंग दीज एक्टिविटीज लाइक बोटिंग, हाइकिंग एंड अदर्स, या फिर हम इसमें फोकस स्ट्रेटेजी की भी तरफ जा सकते हैं कि जो हाइकर्स हैं उनको हम टारगेट करें। तो यहां पर ये इट इज अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी और हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है, लेकिन हमने ख्याल रखना है कि इस प्रॉफिट मार्जिन में हमें अपनी प्राइस को अगर बहुत नीचे ले आए तो ये प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में दोनों के लिए शायद एक्सेप्टेबल ना हो। अब आइए द थर्ड ऑप्शन, दैट इज नीला पानी। नीला पानी में इस वक्त हमारे पास ये पैकेज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल, दैट इज नीला पानी इन रूम एंड टोयोटा GLI, दैट इज पैकेज 6। इसकी जो कॉस्ट बनती है दैट इज 12,400, जिसमें 800 रुपीज पर डे फॉर 3 days, दैट इज 2,400, plus 10,000 is for Toyota GLI, so their cost is 12,400 rupees. Now this is a cost leadership strategy, this is a low cost. यहां पर अगर हम टोयोटा प्राडो इसके साथ जोड़ देते हैं जहां गैप है, तो बेटा ये कॉस्ट सब्सटैंशियली ज्यादा हो जाएगी, जो शायद हमारे स्टेक होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। इसलिए यहां पर भी जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 6, दैट इज नीला पानी इन रूम विद टोयोटा GLI। तो अब अगर इस सारी चीज को मैं यहां कंक्लूड कर रहा हूं तो हमने प्रीमियर होटल के लिए जो गैप आइडेंटिफाई किया
We said this is a workable plan. इसी तरह हमने स्टार होटल के लिए जो ऑफर किया वो शायद इतना एक्सेप्टेबल नहीं था. तो अगर मैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर जाऊं तो अब आप देखिए 1 mark फॉर ईच पैकेज डिस्कशन, जो आपने एक एक करके सबको डिस्कस किया, and then up to 0.5 marks for each hotel recommendation, and then 1 mark each for porter's strategy. So I hope now we will be able to handle this question from here. अब आइए इसके क्वेश्चन सी पर. एक चीज और यहां वाजे कर दूं बेटा कि ये जो गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, ये समहाउ एग्जामिनर का एक इंटरेस्टेड एरिया लग रहा है कि इसने पहले भी ये सवाल पूछे हैं कि जी गैप्स कहाँ हैं, उस गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो हाउ इट इज पॉसिबल. आप एक टेबल बनाएं जिसमें आइडेंटिफाई करें व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल, और फिर उस टेबल में मेंशन करें व्हाट इज नॉट अवेलेबल, और फिर उसमें से आप गैप्स आइडेंटिफाई करें कि कहां पर हमारे पास गैप है फॉर ग्रोथ और टू एंटर इनटू द मार्केट. पार्ट सी इसका कह रहा है दैट House Travels representative has devised a premier hotel package targeting affluent families in Islamabad. To promote the package, he is planning to place an advertisement in the national newspaper and directly call people in posh areas of the people. तो दो हमारे पास suggestions हैं, एक advertisement in the national newspaper और दूसरा है direct call to the people. Analyze the promotional strategies devised by HT. अगर मार्क्स हम देखें तो एडवर्टाइजिंग और नेशनल न्यूज़पेपर, इसको डिस्कस करने के 2 marks हैं, that is 1 mark each probably, and then you have discussion on the direct selling for 2 marks. आइए देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है. HT representative has devised a premier hotel package targeting affluent families and family. To promote package, is planning to place an advertisement in the newspaper. अब जहां तक advertisement in newspaper है, ये एक आसान और तेज तरीका होता है एक लार्ज कस्टमर मार्केट तक पहुंचना. लेकिन ये जो मैसेज है अब एक रीजनेबल कॉस्ट पर हर शख्स के लिए पहुंचाया जाता है, including the target audience. When we are saying national newspapers, so beta naturally the message is going to go nationwide. अब दूसरी बात यहां पर अभी देखने तरफ है कि अगर हम न्यूज़पेपर से करते हैं तो जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं उसके साथ हम एक ऐसे कस्टमर सेगमेंट तक पहुंच रहे हैं जो शायद हमारी विसिनिटी में नहीं है और हमारा टारगेट कस्टमर नहीं है. So that, in my opinion, is a wasted investment. That you are trying to take your step at a reasonable cost to somebody, and he may not be your customer even. तो यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम नेशनल न्यूज़पेपर से करेंगे और वो मैसेज सबके पास चला जाएगा तो शायद ये सही टारगेट कस्टमर तक पहुंचेगा. इससे बेहतर ये है कि हम किसी तरह एडवर्टाइज करें और मैसेज को पहुंचाएं फॉर द कस्टमर रिजाइडिंग इन द एरिया ऑफ इस्लामाबाद. और जो हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी हैं उसको हम टारगेट करें ऑन अफ्लुएंट कस्टमर रादर देन जस्ट स्प्रेइंग इट आउट. तो बेटा यहां पर जहां तक एडवर्टाइजिंग और नेशनल न्यूज़पेपर का ताल्लुक है तो ये एक आसान और जल्दी हल करने वाला तरीका है. लेकिन इससे मैसेज उन लोगों के पास भी चला जाता है
at a certain cost, जो कि शायद हमारे कस्टमर ना आज हैं ना फ्यूचर में बनेंगे। इसके लिए कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि इस मैसेज को स्प्रे आउट करो, इसको टारगेट करो टू द कस्टमर इन द एरिया ऑफ इस्लामाबाद एंड क्लोज बाय। जहां तक डायरेक्ट डेलिंग की बात है, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकें और उसे परसुएड कर सकें टू बाय द पैकेज। लेकिन इसमें एक कबाहत है, और वो कबाहत ये है कि डायरेक्ट कॉलिंग से नॉर्मली जो कस्टमर है वो प्रेशराइज्ड फील करता है। हो सकता है आप उसको उस वक्त अप्रोच कर लें वो जो किसी और काम में बिजी है, उसकी कमिटमेंट किसी और तरफ डाइवर्टेड है। तो इसलिए डायरेक्ट कॉलिंग से जो हमारा कस्टमर है वो प्रेशराइज्ड फील कर सकता है। इसके बजाय हमारे लिए बेहतर है कि हम ब्रोशर्स लें और उन ब्रोशर्स को हम मेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाएं। So we have now gone through this question 5. It was a very typical question for SPM. आज मैं आपको BMS का पेपर भी एक स्टार्ट करवाऊंगा, तो आपको खुद फील होगा कि जो पेपर की कंस्ट्रक्शन है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेंथ ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो बहुत चेंज हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, which is on Kolachi Nihari. And let's see what the question has to say. Kindly, if the students can focus on the case study, and as I read, they should focus on what is there in the case study. Kolachi Nihari is a new restaurant that is becoming popular for its unique taste of Nihari. It is using traditional methods of promotions such as billboards, brochures, promotional vouchers to attract the customer. Ken has a bustling dine-in, takeaway and delivery business. अब purposefully उसने यहाँ पर एक environment create की है कि organization is quite busy in orders which are dine-in or takeaway or for delivery. However, the telephone calls for deliveries are too many to handle, and there are numerous complaints of erroneous order taking. वो ये कह रहा है कि जब हसल बसल है, वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर का इनफ्लो है, तो फिर सिस्टम अंडर प्रेशर है, और कस्टमर का ये कंप्लेंट है कि आप इतना अंडर प्रेशर है जिसकी वजह से उनके पास जो असल ऑर्डर है वो पहुंच नहीं पाता। अब इस मसले के लिए केन ने उसकी कुछ सजेशंस हैं। उसे कहा जी, पहला तरीका ये है कि हम अपना एक वेब पोर्टल डेवलप कर लें। दे वांट टू मूव टुवर्ड्स ई ऑपरेशंस। एक वेब पोर्टल डेवलप कर ले जिससे हम एडवर्टाइज भी कर सकें, मार्केटिंग भी कर सकें, और साथ ही हम ऑर्डर्स भी ले सकें। Then we have e-intermediaries. बेटा, e-intermediary उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो बायर और सेलर के दरमियान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। सो हु इज एन इंटरमीडियरी? ये वो पार्टी है जिसमें अभी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, और ये पार्टी अब डिसाइड करना चाह रही है कि वो क्या वेब पोर्टल से कस्टमर्स तक पहुंचे, या फिर मैं बता रहा था कि ई इंटरमीडियरी वो बॉडी है जो कि फैसिलिटेट करती है अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर. So you have some very interesting facts available to start with. Question number 1. Question number 1 कहता है, explain why using e-intermediary would be a better option for KN than developing its own web portal.
देखिए उसने आपके लिए काम आसान कर दिया, उसने आपसे उसको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे नजदीक ई इंटरमीडियरी का इस्तेमाल अपना वेब पोर्टल बनाने से ज्यादा बेहतर। उसने आपसे कहा ये तो मैंने आपको बता दिया, आप मुझे एक्सप्लेन कर दें हाउ इट इज बेटर। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जब वर्ब एक्सप्लेन यूज किया जाए तो देयर आर मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड देन द रेस्ट ऑफ द मार्क्स आर फॉर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ 8 मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं और दो, that means it is almost 2 marks each, identification and then explanation, and that means that there will be about 4 points here. तो आइए देखें कैसे हम एक्सप्लेन करें कि जो हमारी ई इंटरमीडियरी है वो हमारे वेब पोर्टल ऑपरेशन से बेहतर है। आइए पहला देखें, रीजन है दैट इज कॉस्ट। देखिए ई इंटरमीडियरी को के साथ ज्वाइन करने में हमें एक बड़ी मिनिमल सी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, एक बड़ी ही इनिशियल लो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू गेट आवर सेल्फ रजिस्टर्ड विद एन इंटरमीडियरी। जबकि अगर हम एक वेब पोर्टल खुद डेवलप करें इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। हाँ, अगर हम ई इंटरमीडियरी के साथ रजिस्टर होते हैं तो हमें जरूर उसके साथ अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा शेयर करना पड़ेगा एज कमीशन। लेकिन अगर हम वेब पोर्टल की तरफ जाते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी एक्सपेंसिव टू एक्चुअली डेवलप दैट वेब पोर्टल। तो पहला एडवांटेज जो हमें ई इंटरमीडियरी में हासिल हो रहा है दैट इज द कॉस्ट। दूसरा एडवांटेज जो हमें हासिल हो रहा है दैट इज इमीडिएट एक्सेस। एक वेब पोर्टल को डेवलप करना और फिर उसको एस्टेब्लिश करके उसको रिकॉग्नाइज करवाना इट विल रिक्वायर सम टाइम। लेकिन ई इंटरमीडियरी जो है वो आपको रेडिली अवेलेबल होगा और वो आपको एक एक्सेस दे देगा फौरन ही टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। इस वक्त हम कंपेयर कर रहे हैं हाउ ई इंटरमीडियरी इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन देन योर वेब पोर्टल्स। तो पहला एडवांटेज हमें कॉस्ट में था, दूसरा एडवांटेज हमें हासिल हुआ इमीडिएट एक्सेस, तीसरा एडवांटेज है कि जब हम एक ई इंटरमीडियरी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक एक्सेस हासिल हो जाएगी टू already well established website which is already established, recognized and is being maintained by an expert team of experts। जबकि अगर हम खुद एक वेब पोर्टल डेवलप करते हैं तो उसमें हमें टाइम लगेगा, हमें रेगुलरली उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसमें से जो भी टेक्निकल फ्लॉज हैं उसको रिमूव करने के लिए। देन एक और जो एडवांटेज हमें हासिल होगा दैट इज स्किल्स। वेब ऑपरेशंस के लिए हमें कुछ टेक्निकल स्किल्स चाहिए जो एक्सपेंसिव होंगे। अगर हम इंटरमीडियरी को ज्वाइन कर लेते हैं देन दो स्किल्स आर हायर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरमीडियरी। और जो केएन है दैट इज कराची निहारी, उसको उन एक्सपेंसिव स्किल्स को हायर नहीं करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी सेव करेगा और उसको मैनेज में ही उसको करने की जरूरत नहीं है। वो स्किल्स हमारे बिहाफ पर जो हमारा ई इंटरमीडियरी है वो खुद मैनेज कर रहा होगा। तो हमने 4 अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए। पहला, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, वेब पोर्टल इज गोइंग टू एक्सपेंसिव, joining an e intermediary is going to be relatively inexpensive. If we go for web operations, तो उसको बनाने, एस्टैब्लिश, रिकॉग्नाइज कराने में वक्त लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ई इंटरमीडियरी की तो हमें एक इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगी टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। देन अगर हम इंटरमीडियरी को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज वेबसाइट एकदम अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन खुद डेवलप करने में, उसको मेंटेन करने में, उसको अपडेट करने में उसमें वक्त लगेगा। Then another is the skills. Whatever skills are required
for web operations, for e-operations, they are expensive, और e-intermediary की सूरत में ये सारी responsibility हमारे इस partner की तरफ हो जाएगी. So we have identified 4, और मैंने शुरू में आपको बताया था कि there are 8 marks, 2 marks each. अब आइए देखें इसका second part B. Explain the existing promotion strategy of KN. Also suggest how it could be different if KN decides to select the platform of e-commerce. उसे कहा जी इस वक्त जो आप promotion strategy use कर रहे हैं उसको evaluate कर दें और how it's going to be different. आइए जरा case study में देख लें हम वो किस तरह इस चीज को manage कर रहा है. So let's focus on the question paper. Kulachi Nihari is a new restaurant that is becoming popular for its unique taste of Nihari. It is using traditional methods of promotion such as billboards, brochures, and promotional vouchers to attract the customers. तो जैसे part B में उसने कहा जी explain the existing promotional strategy. तो वो एक traditional strategy use कर रहा था, which is promotion through the billboards, brochures, and promotional vouchers. Also suggests how it could be different if KN decides to select the platform of e-commerce. आइए यहाँ हम देखें, पहले जैसे मैंने बताया ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये सिर्फ एक वन वे ट्रैफिक होती है. इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को परसुएड करती है टू बाय द प्रोडक्ट. इट्स नॉट अ टू वे इंटरैक्शन. अगर ये ई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो बेटा यहां पर ये कंपनी यूज कर सकेगी बोथ पुश स्ट्रेटेजी एंड पुल स्ट्रेटेजी. अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी की तो बेटा ये सिर्फ पुल स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स के थ्रू कस्टमर्स को पुल करते हैं टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट. लेकिन जब मैं इस ई प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो हम दोनों यूज कर रहे हैं पुश स्ट्रेटेजी भी और पुल स्ट्रेटेजी. पुल स्ट्रेटेजी क्या है कि हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन मटेरियल भिजवाएं, उनको ईमेल्स के थ्रू टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचे. दैट इज द पुश स्ट्रेटेजी. और पुल स्ट्रेटेजी भी ये होगी कि हम अपनी वेबसाइट को डेवलप, जो भी वेबसाइट हमारे चाहे इंटरमीडिएट की या अपनी, एक्सपेक्ट करें कि कस्टमर वहां आकर और हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेगा और ऑर्डर्स प्लेस करेगा. तो ई प्लेटफॉर्म पे आने के इसको अगर एवेल्युएट करें तो हम दोनों स्ट्रेटेजी यूज कर सकेंगे, पुश स्ट्रेटेजी भी और पुल स्ट्रेटेजी. व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्न्ड? ट्रेडिशनल इट्स वन वे, इट्स ओनली पुल स्ट्रेटेजी, or either it is only push strategy. We can use one. लेकिन ई प्लेटफॉर्म पर हम एक ही वक्त में दोनों यूज कर सकते हैं. पुश स्ट्रेटेजी में हम आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल कस्टमर्स और उनको मेल्स के थ्रू या किसी तरह अपने मैसेज मार्केटिंग कम्युनिकेशन मटेरियल्स को भिजवाएं. और पुल स्ट्रेटेजी है जहां पर कि हम एक वेबसाइट डेवलप करें, चाहे वो अपनी हो चाहे वो इंटरमीडिएरी की हो, और फिर एक्सपेक्ट करें कि कस्टमर वहां पर आके हमारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लेगा और ऑर्डर्स को प्लेस करें. So this winds up our discussion on question number 6. If you remember, we have already covered question number 7, which was on project management. कल हमने project management network analysis पर दोनों questions हल कर लिए थे, समर का भी और विंटर का भी. अब इस डिस्कशन के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा विंटर 2021 का पेपर, बट एज इट इज मगरिब नमाज टाइम, सो आई विल बी टेकिंग नमाज ब्रेक हियर एंड we'll inshallah meet here in 15 minutes, 15 to 20 minutes. इस वक्त मेरे पास 6:50 हुए हैं, so it's going to be a 15 to 20 minutes break for namaz. And inshallah, we'll come back and we'll start from winter 21 paper. See you in about 15 to 20 minutes.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नमाज से पहले, ब्रेक से पहले हमने विंटर 2022 का पेपर मुकम्मल कर लिया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपके साथ समर 22 का हमने पेपर मुकम्मल किया था, और अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ विंटर 21 का पेपर। नेचुरली ये पेपर उस वक्त था जब ये पुरानी स्कीम में था, सब्जेक्ट एज BMS, और आपको क्वेश्चंस देखकर ही एहसास हो जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चंस की, अब वो बहुत डिफरेंट है। जैसे आप में से मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया था, तो इसमें से बेशतर सवाल अब जो उनका स्ट्रक्चर है वो अब चेंज हो चुका है अक्सर, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है इन क्वेश्चन से कि इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से। और कल का हमारा जो लेक्चर आखिरी सेशन है, उसमें मैं आपके साथ, जैसे मैंने कहा था कि मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि अब तक जितनी भी जो अटेम्प्ट्स हैं उसमें कौन कौन से एरियाज कवर हुए, और इम्पोर्टेंट एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि लाइक्लीहुड क्या है। नेचुरली दैट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट एन एश्योरेंस। और साथ ही जो वर्ब्स यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस करूंगा। आइए अब हम शुरू करते हैं 2021 का ये पेपर। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसको आप फोकस करें, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस पेपर को भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। The paper now appears on the screen for the sake of those who don't have the ready copy available with them, and later then we'll go on to the solution of this question. This question is on actually evaluating strategies, or particularly the question here on evaluation of strategy for international business operations. आइए इस केस स्टडी पर फोकस करें। Starbeans is a well-known brand for cafes in Emerita. It is one of the biggest names in the cafes in terms of revenue, number of branches, and reach within the country. Starbeans is renowned for its great tasting coffee and trendy cafes in high activity areas like commercial hubs and tourist spots. Starbeans is frequently recommended for numerous tourist blogs as a must-try for people visiting Emerita. तो ये तो है उस कंपनी का करंट सिनेरियो जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, कि वहां पर ये एक रिकग्नाइज्ड ब्रांड है, इसके रेवेन्यूज अच्छे हैं, इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस रिकग्नाइज्ड हैं, and it is probably getting to almost all different parts of the country. Second paragraph, 2 years ago, SB decided to open cafes in Serenai, a small mountainous country that is well known for its beautiful landscapes and lakes among the tourists. अब ये कंपनी इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए जा रही है, और उसके लिए उसने एक जगह का इंतखाब किया है जो अपनी खूबसूरती और अपने टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर है। Serenai has a rich coffee culture. तो Starbeans जो कि एक ब्रांड है कैफेज का, और अपने टेस्टी कॉफी के लिए रिनाउंड है, उसने जगह भी वो सेलेक्ट की है जहां पर कॉफी कल्चर एग्जिस्ट करता है। अभी हमें समझ आती है कॉफी कल्चर से क्या मुराद है।
For Syrians, coffee is not just a drink. It is a part of their social culture. जैसे हमारे मुल्क में यहाँ पर पहले पार्टी हाउस था, शाम को लोग वहां पर सोशलाइज करते हैं उसमें बैठ के, वहां पर कुछ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आपस में लिटरेचर पर, दूसरे आर्किटेक्ट्स पे, वो जो आपस में इकट्ठे होते थे, इसी तरह ये कॉफी कल्चर भी ये है कि इट इज नॉट जस्ट अ ड्रिंक, इट्स अ पार्ट ऑफ द सोशल कल्चर. Meeting over a cup of coffee is a common reason to meet family and friends. Almost every neighborhood in Serenai has a coffee shop where local gather after work. ये आपको सारा कॉफी कल्चर समझाया जा रहा है कि तकरीबन हर नेबरहुड में कॉफी शॉप्स हैं और लोग वहां पर इकट्ठे होकर सोशलाइज करते हैं. अब ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके सामने आ रहा है. The servers at the cafe usually know the regular customers by names. ये इस कल्चर का बहुत अहम फीचर है जो हमारे एक सवाल के सॉल्यूशन में रोल प्ले करेगा, कि वहां जो सर्वर्स थे वो लोगों को नाम से जानते थे and serve their preferred flavors without having to ask first. Now this is a very important element of the culture कि एक दूसरे को जानना और उसकी नीड को भी समझना और उसको सर्व कर देना जो वो चाह रहा है. इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए यहां जा रहे हैं तो हमारे पास वहां के लोगों को की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो वहां पर आके सोशलाइज करेंगे उस कैफे के अंदर. हमारे पास उनकी नॉलेज होना जरूरी है कि वहां कल्चर ये है कि लोग जब सोशलाइज करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो जो सर्वर्स हैं वो उनको पहले से जानते हैं और वो उनसे पूछे बगैर उनकी नीड को पूरा कर देते हैं. अब एक कंपनी जो बाहर से आ रही होगी तो नेचुरली उसके पास शायद वो लोकल नॉलेज अवेलेबल ना हो. Serenai has 3 states and each state has its own local brand. 3 states हैं और हर एक की अपने local brands हैं which are very distinctively different from others. One could take a sip and guess the origin of the coffee where it was made. It was so distinctive कि एक शख्स अगर उसको जरा सा पीता है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये किस स्टेट की कॉफी है. ये सारा आपको उस कॉफी कल्चर को बताया गया है. और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में बेटा बहुत जरूरी है कि आपकी जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है वो लोकल कल्चर को अडॉप्ट करे. अगर वो एक फॉरेन कल्चर को लाकर वहां इंट्रोड्यूस करना शुरू करेगी तो शायद उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी के इश्यूज हैं. Third paragraph. The huge coffee drinking market in Serenai attracted SB in the first place. अब ये एक वो मिसकॉन्सेप्ट था जिसके साथ इस कंपनी ने यहाँ लॉन्च कर दिया. उन्होंने कहा इतनी बड़ी कॉफी कल्चर है, इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, so that's why they entered into this market. SB entered Serenai's market with full force by opening several cafes covering almost every commercial area in each city and all major lakes in the country. And now this is a huge investment. This is a very broad-based strategy कि एकदम सारे अपने cafes को खोल देना, covering almost every commercial area in major cities and all major lakes in the country. ये जो फैक्ट अभी आपको केस स्टडी में दिया गया है ये आगे जाकर भी हमारा एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि एकदम सारे ब्रांचेस को खोल देना, कोई हमने उस मार्केट की टेस्टिंग नहीं की, फील हासिल नहीं की और एकदम सारे ब्रांचेस को एकदम खोल देना. Let's see what was the effect of it. However, SB's business never really picked up in Serenai. It has been 2 years and all the cafes are showing losses.
except a few cafes near the lakes. 2 साल से कंपनी लॉस में जा रही है, उसके बेशतर कैफे सिर्फ चंद उनके जो के लेक्स के पास है, तो प्रॉब्ली उनकी लोकेशन उनको एडवांटेज दे रही है। जो मेजर कमर्शियल एरिया सिटीज में खोली उसने ब्रांचेस, उसमें उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, लेकिन जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और लेक्स पर है उस पर उसको कुछ प्रॉफिट है। SB is not sure what went wrong. The CEO of SB said, "We did everything right. We shipped a great tasting coffee directly from our central plant in America." Now, this is where they are making mistakes. Start getting a feel now. अभी आपने इससे पहले देखा था कि हर स्टेट की अपनी डिफरेंट कॉफी है और बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड रिकग्नाइज्ड टेस्ट है। ये कंपनी SB बाहर से एक कॉफी लेकर आ रही है जो उसके अपने प्लांट पर स्टैंडर्डाइज्ड है, और वो जो लोकल कॉफी टेस्ट है उसके साथ मैच नहीं करेगी। उसके CEO का ख्याल है कि उसने ये सही काम किया कि बाहर से उसने अपने प्लांट से डायरेक्टली सेंट्रल प्लांट से कॉफी मंगवाई, which tasted great in their country and was shipped directly to this country. We made sure that all cafes implementing our winning ways to do the dot. तो उन्होंने अब क्या किया, जो अमेरिका का कल्चर था वहां जो वो अपने कैफे चलाते थे, उसने उसी कैफेज को लाकर यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। We had strong financial support and were committed to stay in Serenai. However, sometimes you don't get all that you want. And with a sad heart, I announced that we will be closing all our loss-making cafes in Serenai. उसे कहा जी हमने सब कुछ ठीक किया, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वक्त है कि हम अपनी जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस हैं उनको बंद कर दें, हालांकि हमारी कमिटमेंट है टू स्टे इन दिस कंट्री ऑफ सेरेना। So I hope all the facts are clear to you from here. Now let's go back to my slides here. The question reads as, evaluate and suggest improvements to SB's strategy of international business operations. हमें ऑलरेडी तो पता है कि हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ क्या एवेल्युएट करो, इंटरनेशनल बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको एवेल्युएट करो और सजेस्ट करो उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। बहुत हद तक जब हम केस स्टडी पढ़ रहे थे और मैं आपको रिव्यू दे रहा था तो हमें वाज़ेह हो गया है, एक फील होना शुरू हो गई है कि वेयर डू यू थिंक द थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग। Include critical success factors in your answer. I hope you know what is the concept of critical success factors. सुनिएगा, इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की ऑफ टारगेट्स एस्टैब्लिश करती है जिसमें सबसे पहले उसकी एक मिशन और विजन स्टेटमेंट होती है। उस मिशन और विजन को वो कन्वर्ट करती है into goals और goals को वो convert करती है into objectives और फिर इस objectives के लिए बनाए जाते हैं plans जिन्हें हम strategy भी कहते हैं। अब इस strategy के success के लिए we have to define which step or which thing is probably the most important out of all. We are doing so many things to implement that strategy. We are doing so many things to achieve the targets related to strategy. But some of the things that we need to do are more important than others, and we call them as critical success factors. हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए उसको मेजर करने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस उसमें कैसी रही, वो हमने वाकई अचीव कर लिया या नहीं,
हम हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए डिटरमिन करते हैं KPIs. That is performance indicators. So we identify that in our strategy, which things we need to do, which are more important, and that will ensure the success of that strategy, and we call them as CSFs. And for every CSF, in order to measure and determine our performance, we define what we call as KPIs. तो यहां पर अब हमारे पास जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि 3 मार्क्स हमें अवेलेबल है out of 11, which is for evaluating the existing strategy. Then about 3 marks are available for identifying the critical success factors, and 1 mark for suggesting the improvements. आइए देखते हैं और फिर हम एंड पर दोबारा इस मार्क स्कीम पर आएंगे and see whether we did the right things. करंट स्ट्रेटेजी को अगर मैं evaluate करूं तो बेटा इस कंपनी ने एक स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी यूज की है. इसको हम इंटरनेशनल स्केल ऑपरेशंस में स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं, जहां पर हम अपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करते हैं. हम उसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी लेकर जाते हैं. गौर से सुनिएगा, विदाउट एनी कस्टमाइजेशन. इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रेटेजी का प्रोबेबली सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दैट वी हैव अ वेरी टाइट कंट्रोल ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग ऑफर्ड. And in addition to that, since we are producing a standardized product for the local as well as international operations, we will achieve the economies of scale. तो बेटा अगर मैं करंट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करूं, evaluate करूं, तो स्ट्रेटेजी है स्टैंडर्डाइजेशन की, और हमने उसके बेनिफिट्स भी आइडेंटिफाई कर दिए कि उसके बेनिफिट थे very tight controls on the standards of output, and that we were able to achieve economies of scale. लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है, ये वेरिएशंस नहीं लाती. ये जो लोकल मार्केट, जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशन में जाते हैं और वहां जो वेरिएशंस आपको चाहिए होती हैं, एडेप्टेबिलिटी आपको चाहिए होती है, ये स्ट्रेटेजी उसके लिए सूटेबल नहीं होती. हम किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी की. वहां हमें लोकल मार्केट के मुताबिक हमें वेरिएशंस लानी थी. तो ये स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रेटेजी जहां पर लोकल मार्केट की वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं, उसके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है. तो बेटा ये तो हमारी डिस्कशन हो गई टू एवेलुएट द करंट स्ट्रेटेजी, और इसके 3 मार्क्स थे मार्कशीट के मुताबिक. देन अब है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. सवाल क्या कह रहा है? इंक्लूड critical success factors in your answers while you define what improvements. बेटा ये तो बड़ा वाज़ेह है कि इंटरनेशनल स्केल ऑपरेशंस में जो स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई. अब अगर उसने सिरेनाई में जहां वो कमिटेड हैं दाखिल होना है, तो उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं. सबसे पहला हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है दैट वी हैव टू अडॉप्ट द लोकल टेस्ट. मैकडॉनल्ड्स जब पाकिस्तान मार्केट में दाखिल हुआ तो यहाँ इन्होंने मस्टर्ड के बजाय मेयोनीज यूज किया. मस्टर्ड लोकल टेस्ट नहीं था और शायद अभी तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. So they started using mayonnaise. दूसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है कि आपको ये एहसास करना है कि लोकल कल्चर ये है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ सिटिंग प्लेस एज अ कैफे. इट इज टू सोशलाइज. हमें अपने कैफे की सेटिंग में वो जो सोशल ड्रिंक का एक कॉन्सेप्ट है
उसको लेकर आना पड़ेगा। चाहे एमर्टिया में जो भी हमारा मॉडल हो उन कैफेज का, वो यहां काम नहीं करेगा। तीसरा, जैसे हमने कहा, नेबरहुड कैफे कल्चर को अडॉप्ट करना होगा। एंड देन वी हैव अनदर इज द पर्सनलाइज्ड सर्विस। आपको केस स्टडी में हमने देखा कि वहां जो लोग सर्व कर रहे हैं वो पहले से लोगों को बाय नेम जानते हैं और वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट सर्व कर देते हैं even before asking. Then another is that when you're introducing an international brand which is going to compete with the local brands, there you have to work on the acceptance of the local clientele. You have to do something different. You have to do something which appeals to the local culture. And another is critical success factor is the पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। जहां पर ये मेजर सिटीज में कामयाब नहीं हुई, वहां ही हमने देखा कि टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पर इसकी फिर भी कुछ सक्सेस फैक्टर थे। तो बेटा यहां पर हमने ये 6 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। अब हाउ डिड वी डिटरमिन 6? बिकॉज वी हैड ऑलमोस्ट अबाउट 3 मार्क्स अवेलेबल फॉर दैट, एंड वी नो उस जो लेवल ऑफ वर्ब यहां पर यूज हुआ है उसमें we are not going to get more than 0.5 for each. So that determined that we should write down at least 6 critical success factors. अब the lessons to learn यहां पर क्या है? जब भी आपको कोई इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी की बात आए तो याद रखिए, पहले तो ये देखना है कि लोकल मार्केट जिसमें आप दाखिल हो रहे हैं वहां भी कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बिकती है या उसमें वेरिएशंस हैं। लुक एट पेप्सी एंड कोका कोला, यहां कोई लोकल वेरिएशंस नहीं, इसलिए यहां इसकी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी निस्बतन आसान और बेहतर है। तो लेसन्स टू लर्न ये है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में जो अडेप्टेबिलिटी टू द लोकल कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम क्या सजेस्ट करते हैं इसको इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी। पहली सजेशन हमारी ये है कि आप रिकॉग्नाइज करें द डिफरेंस इन द कस्टमर नीड इन ईच डिफरेंट कंट्री। इसमें तो आप आ ही गए, और अगर कहीं आप इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यू गॉट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द कस्टमर नीड्स। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि जितनी भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं वो सारी टारगेट करें लोकल मार्केट। इस केस स्टडी में आपने देखा कि जो उनका एक सेंट्रल प्लांट था वहां से उन्होंने वो कॉफी एक्सपोर्ट कर दी टू दिस कंट्री। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है वो इस मुल्क से बाहर हो रही है। तो यहां पर हमें लोकल मार्केट के मुताबिक कॉफी को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने के बाद उससे प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी, या खुद या आउटसोर्स, लेकिन जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं वो इस मुल्क के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैकडॉनल्ड्स और ये फूड चेन जो हैं, इनिशियली दे स्टार्टेड ऑफ बाय इंपोर्टिंग द बेसिक रॉ मटेरियल्स, बट नाउ व्हाट दे हैव डन गोइंग बाय दिस, अब वो मेजर जो वैल्यू एक्टिविटीज हैं वो लोकल मार्केट से ही पिक कर रहे हैं। अब तीसरी चीज हमने ये कही यहां पर कि जब आपने लोकल कस्टमर नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया और सारे वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को लोकलाइज कर लिया, then you have to ensure that the product is suitable for the unique requirements of the local customer. डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और प्रोडक्ट को उस डिफरेंस के मुताबिक अडेप्ट करवाना, कस्टमाइज करवाना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं कि पहले कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करो, और फिर पॉइंट 3 में हमने कहा कि अपनी प्रोडक्ट को उसके मुताबिक अडेप्ट करो, और जितनी भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं उसको लोकलाइज्ड कर लो ताकि वो लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वैल्यू एडिशन करें। So now let's finally get to suggestion. सबसे पहले तो
offer a menu according to the local taste, improve its service to reflect the local culture. अब आपके पास है, शुरू में ये सारे हमें दिए गए, हमने बार बार इनको आइडेंटिफाई किया। एक तो मेन्यू डेवलप करें लोकल टेस्ट के मुताबिक, और हमने ये देखा कि तीनों स्टेट्स में टेस्ट डिफरेंट है। इसका मतलब है सिर्फ कंट्री टू कंट्री नहीं, जब इस मुल्क के हम डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे तो वहां का हर स्टेट का मेन्यू उसके मुताबिक होना चाहिए, और वो जो सर्विस है वो लोकलाइज होनी चाहिए। देन it should not have opened all the branches at once. It should not do that. They should grow organically. पहले कुछ एरियाज में लॉन्च करें, उसकी एक्सेप्टेंस करवा लें, लोकल कस्टमर से उसको एक्सेप्ट करवा लें। जब वो लोकली एक्सेप्ट हो जाए, देन ऑर्गेनिकली ग्रेजुअली स्टार्ट ग्रोइंग। चौथा पॉइंट हमने ये कहा कि इसको एक ऐसी लोकेशन पर लेकर जाओ अपने ब्रांचेस को जहां पर दूसरे कैफेज भी अवेलेबल, क्योंकि वो कस्टमर जो सोशलाइज करने जा रहा है वो उस एरिया में जाएगा जहां ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। तो आप भी अपने आउटलेट्स को सिर्फ कमर्शियल एरियाज में ना लेकर जाओ, वहां लेकर जाओ जहां पर के ऑलरेडी इस तरह के कैफेज नेबरहुड में अवेलेबल है। And then since the tourist spot resorts are doing better, so keep doing that. Point number 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब इंटरनेशनल मार्केट में हम ग्रो करते हैं तो लोकल मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए हम यहां पर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोकल कोलैबोरेशंस करें। ये लोकल कोलैबोरेशंस एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की शक्ल भी ले सकता है, जॉइंट वेंचर की भी ले सकता है, फ्रेंचाइजिंग की भी ले सकता है। तो हम यहां पर लोकल मार्केट की एक नॉलेज हासिल करें बाय एंटरिंग इनटू कोलैबोरेशन विद सम लोकल एंटिटी। तो बेटा हम यहां पर 6 चीजें कह रहे हैं कि अगर ये सिरेनाई में सरवाइव करना चाहते हैं और वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किए इसको हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी में, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में ये चेंजेस करने पड़ेंगे। इस सारी केस स्टडी में बेटा लेसन्स टू लर्न इज दैट इन इंटरनेशनल ऑपरेशन यू शुड सी वेदर यू कैन हैंडल अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। If not, then you must have the knowledge of the local market, both for producing as well as selling. Go by that culture. Don't conflict with the culture. Now let's go on to question number 2. Now, अब बेटा मेरे जो असेसमेंट है पास पेपर्स को मैं देख रहा हूं, तो ये जो चैप्टर जिसको इस वक्त मैं टेकअप करने लगा हूं, जहां पर ये ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज हैं ग्रोथ की, जहां पर एंड सॉफ्ट मॉडल है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, मर्जर्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, this is going to be very important for this term. So all those who are listening, mark this chapter. और यहां जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन की मुनासबत से, दैट इज द ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल। आइए पहले हम ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल को जरा रिव्यू कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फिर हम बड़ी आसानी से while we are reading we'll be able to understand what is the context of the question. जो ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल है जो ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल है उसके मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करती है तो वो एक सीरीज ऑफ चेंज में से गुजरती है, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है।
और हर स्टेज का जो इख्तिताम है वो एक क्राइसिस पर होता है, और जब हम उस क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाती है। तो ग्राइनर के मुताबिक an entity keeps on growing in size. Let's suppose it is in stage 1. उसके peculiar features होंगे, और उन्हीं फीचर्स की वजह से जब वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होगी स्टेज में, तो वो कुछ क्राइसिस डेवलप कर लेगी। वो अभी हम देखते हैं वो क्राइसिस क्या है, और हम उन क्राइसिस को जब रिजॉल्व कर लेंगे तो वो सक्सेसफुली उस स्टेज में से निकलकर ग्रोथ की वजह से स्टेज 2 में चली जाएगी। और अब वो जो स्टेज 2 पर ग्रो करेगी तो फिर एक स्टेज पर उस स्टेज 2 की फीचर्स की वजह से ही, मैं फिर बोल रहा हूं, उस स्टेज की फीचर्स की वजह से ही वो कुछ क्राइसिस फिर डेवलप करेगी। और जैसे ही हम उन क्राइसिस को रिजॉल्व करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेज 2 से निकलकर दाखिल हो जाएगी इनटू स्टेज 3। तो हमें इस ग्राइनर के मॉडल में देखना यह है कि वो स्टेजेस कौन सी हैं और हर स्टेज का क्राइसिस क्या है, और जब हम उस क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो किस नेक्स्ट स्टेज में दाखिल हो जाती है, और उस नेक्स्ट स्टेज का फिर क्राइसिस क्या है। आइए इस मॉडल को, इसके डायग्राम को रिव्यू करें। स्टेज 1 है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी हम इसके फीचर्स देखते हैं, और यहां ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिविटी। आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। ये वो स्टेज है जब ऑर्गेनाइजेशन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, और इसमें हमें नजर आ रही होती है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, चाहे वो प्रोसेसेस में हो, प्रोडक्ट्स में हो, प्रोसीजर्स में हो। लेकिन इस टाइम पीरियड की स्टेज का बहुत बड़ा फीचर है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ प्रोडक्ट को ज़हन में लेकर ना हो, प्रोसेस इनोवेशन हो रही होती है, प्रोसीजर्स की इनोवेशन हो रही होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को एक एंटरप्रेन्योरियल तरीके से मैनेज किया जाता है। एंटरप्रेन्योरियल इज they are ready to take the risk of innovation. They are ready to take the risk of innovation by producing new products which may appeal to the customer. तो इस स्टेज पर क्रिएटिविटी, नई प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही होती हैं, इनोवेशंस हो रही होती हैं, और जो इसके मैनेजर्स हैं वो एक एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच से रिस्क ऑफ इनोवेशन लेने के लिए तैयार होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो फिर ऑर्गेनाइज हो जाती है विद। तो देखिए इस स्टेज में आपको, इस स्टेज के अंदर भी आपको तब्दीलियां नजर आ रही होती हैं। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है, अब जहन में रहे कि ये एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ एक इनफॉर्मल सा स्ट्रक्चर था, प्रोडक्ट्स में, प्रोसेसेस में इनोवेशन हो रही है, लेकिन अभी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आई, फॉर्मलाइजेशन नहीं आई। ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है इनटू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, और यहां पर एक क्राइसिस डेवलप होगा, एंड दैट इज द क्राइसिस ऑफ द लीडरशिप। तो पहली जो स्टेज है इसमें हम ग्रोथ करते हैं थ्रू क्रिएटिविटी, और इसका जो क्राइसिस है वो है लीडरशिप। यही हमने यहां याद रखना है कि पहली स्टेज में जो ग्रोथ है वो क्रिएटिविटी से हासिल की जाती है, और इसका इख्तिताम जाकर होता है जहां पर वी स्टार्ट गेटिंग द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। अब इस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप को सॉल्व करने के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो गई है, वो जो एक शख्स उसको लीड कर रहा था, मैनेज कर रहा था, अब वो नाकाफी है। वो एक जो सोल प्रोप्राइटर था, सोल ओनर था, एंटरप्रेन्योर था, अब वो इनएफिशिएंट हो गया है उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। अब इस लीडरशिप, तो वहां पर एक शख्स की लीडरशिप नाकाफी हो गई है, एक लीडरशिप का क्राइसिस डेवलप हो चुका है।
तो अब यहां पर उसको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे प्रोफेशनल मैनेजर्स, जो कि सॉल्व करेंगे क्राइसिस के लीडरशिप को, एंड फ्रॉम देयर दिस विल एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो बेटा स्टेज 1 इसका वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन इस स्टेज में ग्रोथ हो रही है क्रिएटिविटी के थ्रू, और क्राइसिस जो डेवलप हो रहा है वो लीडरशिप क्राइसिस है। अब जो सेकंड स्टेज है, इसमें अब हम ग्रोथ हासिल करते हैं थ्रू डायरेक्शन। अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसका क्या माने। और यहां एंड पर अब जो क्राइसिस डेवलप होगा, दैट विल बी द क्राइसिस ऑफ एन ऑटोनॉमी। अब देखिए ये जो लाइंस है ये शो कर रही है ग्रोथ को, और यहां ये जो एक ईसीजी की तरह की लाइन डिस्टर्ब हुई, ये शो कर रही है कि अब क्राइसिस डेवलप हो रहा है। और जैसे ही ये क्राइसिस सॉल्व हुए, देखिए it entered into the next stage, and then it is a smooth growth uphill. But again it starts feeling crisis. Once it is resolved, it goes into the third stage. आइए जरा स्टेज 2 के, फेज 2 के जरा फीचर्स देखें। इसमें अब जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाता है, और हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब वो अकेले शख्स से हट के एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट हायरार्की डेवलप करनी पड़ती है, और ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मोर फॉर्मल सिस्टम्स। ये ज़हन में रहे कि जो स्टेज 1 है इसमें बहुत ही चीजें इनफॉर्मल थी, क्रिएटिविटी भी हो रही थी प्रोसेसेस में, स्ट्रक्चर्स में, प्रोडक्ट्स में। अब यहां पर एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है स्टेज 2 पे, just like a functional structure. I'm sure you remember different types of organizational structure. तो यहाँ पर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ट्रेडिशनल हायरार्की के साथ डेवलप होना शुरू होता है, एक फॉर्मल सिस्टम्स आते हैं। अब जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन अब ग्रो करती है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन फिर इसका जो हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। अब ये इनएफिशिएंट क्यों हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई, एक ट्रेडिशनल हायरार्की आ गई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऑफ मैनेजर, और वो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अब एक्चुअल ऑपरेशन से बहुत दूर हो जाती है। एक्चुअल ऑपरेशन तो बिल्कुल लो लेवल पर जाकर हो रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल हायरार्की बन गई, और जो सीनियर मैनेजमेंट है अब वो एक्चुअल ऑपरेशन से बहुत दूर हो जाती है। वो जो लोकल मैनेजर एक्चुअली उनके पास सारी ऑपरेशनल नॉलेज है। तो यहां अब जो एक क्राइसिस खड़ा हो जाता है वो है क्राइसिस अथॉरिटी का। सीनियर मैनेजर्स दे स्टार्ट लूजिंग द अथॉरिटी। क्यों? अथॉरिटी किन के पास है? वो जो लोअर लेवल पर मैनेजर जो ऑपरेशंस के बिल्कुल नजदीक है, वो जो सीनियर मैनेजमेंट है, अब दे स्टार्ट फीलिंग द क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी। एक टेंशन खड़ी हो जाती है बिटवीन द सीनियर मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इस क्राइसिस में अब जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो ऑलरेडी ऑपरेशन से बहुत दूर है, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग वो सीनियर मैनेजमेंट कर रही है, हालांकि क्लोज लोकल ऑपरेशन है। जो लोकल मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनके पास नॉलेज है सारी ऑपरेशंस की, और अथॉरिटी उन सीनियर मैनेजर्स की है जो लोकल ऑपरेशन से बहुत दूर है। एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है दोनों लेवल्स के अंदर। तो यहां पर अब जो क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी, क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी डेवलप हो गया है, तो अब जरूरी है कि हम इसको रिजॉल्व करें बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स। तो अब स्टेज 2 पर बेटा ग्रोथ हम कर रहे हैं डायरेक्शन के थ्रू, और जो क्राइसिस खड़ा हुआ है वो है ऑटोनॉमी का। और इसको किस तरह रिजॉल्व किया गया कि अब जो सीनियर मैनेजर्स हैं उन्होंने अथॉरिटी डेलीगेट करना शुरू कर दी टू द लोअर मैनेजर्स, और अब हम स्टेज 3 में दाखिल हो गए, जहां अब हम ग्रोथ हासिल करेंगे डेलीगेशन के थ्रू। तो देखिए स्टेज ए में हम ग्रोथ हासिल कर रहे थे क्रिएटिविटी के थ्रू, स्टेज 2 में डायरेक्शन के थ्रू, और स्टेज 3 में अब हम ग्रोथ हासिल करेंगे डेलीगेशन।
अथॉरिटी डेलीगेट करना शुरू करेंगे टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स। और अभी आप देखेंगे कि जब हमने अथॉरिटी डेलीगेट करना शुरू कर दी तो अब जो सीनियर मैनेजर्स है दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे हैव लॉस्ट द कंट्रोल, और यहां अब एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, क्राइसिस ऑफ कंट्रोल। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है एक लेवल तक स्मूथ ऑपरेशंस जाते हैं, फिर एक क्राइसिस खड़ा होता है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। तो स्टेज 3, अब बेटा स्टेज 3 में देयर इज मच मोर अथॉरिटी विद द लोकल लो लेवल मैनेजर्स। ये वो स्टेज है जहां पर अब डिविजन्स बन जाते हैं, डिपार्टमेंट्स नहीं, डिविजन स्ट्रक्चर वजूद में आ जाता है। वी हैव द फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अगर ये कहें तो गलत नहीं है, यहां पर हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर था, यहां हमारे पास एक फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और यहां अब हम एक डिविजनल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जहां पर डिविजन मैनेजर्स के पास सारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन डिविजन मैनेजर्स के ऊपर कॉर्पोरेट हेड्स बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस है, बट हे दिस इज वेयर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन। अब जो सेंट्रल मैनेजमेंट है उसका काम है कि वो रिपोर्ट्स रिसीव करे फ्रॉम दीज डिविजन्स, जबकि डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है वो डिविजनल मैनेजर्स ही कर रहे हैं। और सेंट्रल जो ऑफिस है, जो जिसे हम कॉर्पोरेट ऑफिस कर रहे हैं, उनका काम सिर्फ इस हद तक रह गया कि वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स रिसीव करते चले जाएं। जो सेंट्रल मैनेजमेंट है नो डाउट उनका फोकस बड़ा डिफरेंट है, मेजर स्ट्रेटेजी बनाना, एक्सपेंशन करना, लेकिन वो ये अब फील करते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं उन पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया। नो डाउट दे आर स्टिल मेकिंग द मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स कहां करनी है, लेकिन जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो ये समझते हैं कि अब हम इस ऑपरेशन कंट्रोल को लूज कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर जो क्राइसिस खड़ा हो जाता है बेटा, दैट इज क्राइसिस ऑफ कंट्रोल। अब जरूरी है कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तब्दीली लेकर आए और किसी तरह इस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को रिजॉल्व करें। तो यहां जिस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को अब हम रिजॉल्व करते हैं, दैट इज थ्रू इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन the different levels of management and different parts of the organization. अब उस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के थ्रू उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो देखिए स्टेज 4 में अब क्या हो रहा है, अब जो सेंट्रल मैनेजमेंट है वो सोफिस्टिकेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम्स डेवलप करती है, और अब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं हो रही, they now start holding the local managers accountable for the authority that have been delegated to them. इससे पहले ज्यादातर अथॉरिटी डेलीगेशन थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ये स्टेज 4 है जहां पर अब मैनेजर्स पर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अब फोकस क्या है इस सारी रिपोर्टिंग का, इस अकाउंटेबिलिटी का? फोकस है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट लोकल ऑपरेटिंग डिविजन्स and consolidating the businesses. लेकिन अब ये जो टू मच रिपोर्टिंग है, माइक्रो मैनेजमेंट आप इसको से बाज़ दफा ये उसमें कन्वर्ट हो जाती है कि हर चीज के ऊपर हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजो। क्यों? कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है रिपोर्ट जनरेशन। तो अब इससे जो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है बेटा, दैट इज द क्राइसिस ऑफ रेड टेपिज्म। टू मच ब्यूरोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर वजूद में आ जाता है कि किसी भी जरा सी एक हरकत है आपने हेड ऑफिस को बताना है, रिपोर्ट करना है उस चीज के ऊपर। सो यहां पर अब जो एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, दैट इज रेड टेपिज्म। तो देखिए स्टेज 1 में क्रिएटिविटी के थ्रू ग्रोथ हासिल की, स्टेज 2 में हमने डायरेक्शन के थ्रू कंट्रोल हासिल की, और डायरेक्शन हमें कौन दे रहा था? वो फॉर्मल स्ट्रक्चर। हर चीज के लिए डायरेक्शन अवेलेबल थी, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर वजूद में आ चुका था। तीसरी स्टेज पर हमने डेलीगेशन के थ्रू, और चौथी स्टेज पर हमने कोऑर्डिनेशन के थ्रू की, और यहां पर अब जो क्राइसिस खड़ा हो गया वो खड़ा हो गया रेड टेपिज्म पर। एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वजूद में आ गया।
हर चीज के लिए रिपोर्ट करो। अब इसके लिए जरा फीचर्स देखिए। अब जो हेड ऑफिस मैनेजमेंट है और जो लोकल मैनेजर्स हैं, अब वो तरीके ढूंढते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटिटिव नहीं होना बल्कि कोलैबोरेटिव होना है। तो अब इस स्टेज पर कोलैबोरेशन लाने के लिए देयर इज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अब वो फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम पर ज्यादा तवज्जो नहीं होती थी या अकाउंटेबिलिटी पर नहीं होती थी। अब यहां से तवज्जो रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी से हटकर टीम वर्क पर आ गई, कोलैबोरेशन पर आ गई, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई। ना वो सीनियर मैनेजमेंट के पास थी, ना सिर्फ डिवीजन के पास थी, एक कोलैबोरेटिव डिसीजंस लेनी हमने शुरू कर दी। लेकिन ये वो स्टेज है, कहा यह जाता है के मुताबिक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टेज 5 से आगे नहीं गई। हमें ये नहीं मालूम अभी कि स्टेज 5 का क्राइसिस क्या होगा और उस क्राइसिस के लिए हम उस क्राइसिस को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे कि हम चले जाएं इनटू स्टेज 6। तो बेटा जो इनका मॉडल है वो हमें ये बता रहा है कि जी पहली स्टेज पर जब ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नीशल है, वो क्रिएटिविटी स्टेज पर होती है और आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रो आउट करती है तो क्राइसिस डेवलप होता है लीडरशिप का। इस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप को हम फॉर्मल सिस्टम से हैंडल करते हैं और अब ऑर्गेनाइजेशन स्टेज 2 में उस फॉर्मल सिस्टम की डायरेक्शंस के थ्रू ग्रो करती है। लेकिन यहां पर अब डेवलप हो जाता है द क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी। सीनियर और जूनियर मैनेजर के दरमियान जो अथॉरिटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिटवीन सीनियर एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए अब सीनियर मैनेजर्स के पास एक ही हल था कि वो डेलीगेट करें, डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट करें। लेकिन जब उन्होंने डेलीगेशन शुरू की तो पता ये चला कि बाय एंड ऑफ द डे दे नाउ हैव अ क्राइसिस ऑफ कंट्रोल। अब इस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को हेल्प करने के लिए दे सेड लेट्स कोऑर्डिनेट। और यहां पर जाकर अब जो क्राइसिस खड़ा हुआ वो था रेड टेपिज्म का, वेरी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। हर चीज के लिए हेड ऑफिस को रिपोर्ट करो। अब इस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने के लिए वी वेंट टू पार्टिसिपेटिव अप्रोच, दैट इज कोलैबोरेशन। एक टीम वर्क पर एम्फेसिस शुरू हुआ और जैसे मैंने कहा कि ग्रेनर के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टेज 5 से आगे नहीं गई और यही है कि अभी हमें यह भी नहीं पता कि स्टेज 5 पर हमारे पास क्राइसिस क्या हो। तो इस मॉडल पर अगर कोई लाइकली क्वेश्चन आ सकता है तो बेटा वो इसी तरह है कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस दे दी जाए जैसे अभी हम करने लगे हैं और आपसे पूछा जाए कि ये आपके ख्याल में ये कंपनी किस स्टेज में और उसका क्राइसिस कौन सा होगा और इस क्राइसिस को वो किस तरह रिजॉल्व कर सकती है। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 of your paper for winter 2021. Let me get the slide share for you ताकि आप उसको यहां से देख सकें। पहले जरा रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। In light of Grainer's growth model, explain the current growth phase and the crisis to be expected from company A and company B. हमने ये बताना है कंपनी A किस ग्रोथ स्टेज में और अब क्या लाइकली क्राइसिस खड़ा हो सकता है। अभी जो हमने रिविजन की इसमें पता चल गया हर स्टेज के फीचर्स हैं, हमें मालूम है वो कौन सा होगा और हमें ये भी मालूम है कि हर स्टेज पे अब क्राइसिस क्या खड़ा होता है एट द एंड। आइए जरा रिव्यू करते हैं कंपनी ए को फर्स्ट। कंपनी ए इज अ कॉटन yarn manufacturer founded in 1997. It has 65 employees with rupees 58 million revenues and is growing steadily.
अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है, इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन. वेल स्ट्रक्चर्ड मीन्स फॉर्मल, which allows centralized decision making model and has strong procedures and control. बहुत क्लियर हिंट यहां पर आपको एग्जामिनर देगा. एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है और इस फॉर्मल स्ट्रक्चर में सारी डिसीजन सीनियर मैनेजर के पास जा चुकी है. एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा अथॉरिटी का यहां पर. However, recently there have been number of concerns raised by the employees about the efficiency and the effectiveness of decisions made by the top management. सारे डिसीजन वो ले रहे हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है, जूनियर मैनेजमेंट है, वो पार्टिसिपेटिव नहीं रही और उन्हें यही डर है कि जो देयर कैन बी रॉन्ग डिसीजंस टेकन बाय द सीनियर मैनेजमेंट. वो इसलिए कि ये सीनियर मैनेजमेंट ऑपरेशन से बहुत दूर है, उनको प्रॉब्लम्स का नहीं पता, उन्हें सॉल्यूशंस का नहीं पता. आइए देखें कंपनी बी क्या कहती है. It is a direct competitor of Company A. It was founded in 2007 and has 68 employees with rupees 65 million revenue. अब बहुत इंटेलिजेंटली बेटा जरा नोट करो कि जो कंपनी ए का हमें बताया गया वो 97 में शुरू हुआ और जो बी कंपनी है इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए 2007. ये आगे जाके मैं इस फैक्ट को नोट आपको यूज करवाऊंगा, लेकिन ये देख लीजिए कि कंपनी ए ने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए और कंपनी बी ने कब किए. कंपनी बी के मतलब कहा जा रहा है इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज इवॉल्व्ड इनटू 5 डिविजन्स. आई एम श्योर आपको अब लेक्चर याद आ गया होगा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर से डेलीगेशन हुई और डेलीगेशन से अब आ जाएगा यहां पर डिविजन्स. Each having its own division manager who handles all matters pertaining to the division and reports progress to the top management. हमें ये बताना है कि कंपनी ए किस स्टेज पर है और कंपनी बी किस स्टेज पर है. Let me have the slide share, please. अब कंपनी ए जो है उसकी करंट स्टेज क्या है बेटा? इट इज इन द सेकंड स्टेज. अगर हम यहां पर देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें एक बड़े फॉर्मल सिस्टम नजर आ रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं. दिस इज अ क्लियर कट identification that this organization is in the second stage, जहां पर कि हम ग्रोथ हासिल करते हैं डायरेक्शन के थ्रू, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू जो कॉन्स्टेंटली हमें डायरेक्शंस पास ऑन कर रहा होता है. और इस स्टेज पर हमें मालूम है कि अब जो क्राइसिस खड़ा होगा दैट विल बी द क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी. जो लोकल मैनेजर्स हैं वो अब ऑटोनॉमी डिमांड करेंगे, अथॉरिटी डिमांड करेंगे. क्यों? वो कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए नॉलेज तो हमारे पास है, हम ऑपरेशंस के नजदीक हैं. तो यहां पर अब इस ऑटोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द डेलीगेशन ऑफ द लोकल मैनेजर्स. वी हैव टू डेलीगेट अथॉरिटी टू द लोकल मैनेजर्स. कंपनी बी को देखिए, हमें क्लियर कर नजर आ रहा है कि यहां डिविजन्स बन चुके हैं. वो जो डेलीगेशन की लोकल मैनेजर्स को, सो नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम फंक्शनल टू द डिविजन स्ट्रक्चर, जहां पे अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द लोकल मैनेजर्स. और ये डिविजन्स जो हैं दे आर नाउ द प्रॉफिट सेंटर्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कॉस्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज. अब डेलीगेट करने के बाद जो सेंट्रल मैनेजमेंट है अब उसका काम फोकस हो जाता है ऑन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड बिजनेस एक्सपेंशन.
तो गार्नियर का जो स्टेज था, मॉडल था, इसके मुताबिक ये जो कंपनी है अब स्टेज 3 पर है. It has gone through that issue and now it is at this stage, third stage. So company B is in the third stage where now the growth is achieved through delegation of authority. Crisis यहां पर क्या आएगा? जब सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देंगे तो जो सीनियर मैनेजमेंट है, they will start believing that they have lost control over the operations. जो सेंट्रल मैनेजमेंट है, they will start realizing कि उनके पास कंट्रोल नहीं रह गया. अब इस स्टेज पर आपने देखा था कि जब कंट्रोल का क्राइसिस होता है तो फिर हम उसको अचीव करते हैं बाय बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन था उसमें सिंपल आइडेंटिफिकेशन थी और ये कहा गया कि बताइए कौन से स्टेज पर है कंपनी, और ये कहा गया कि बताइए कौन सा क्राइसिस अराइज होगा. अब आइए क्वेश्चन नंबर 3A. Now this इसका मैंने 2B आपको सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि उस नेचर का अब कोई क्वेश्चन जो है वो शायद नहीं, लाजमी तौर पर इस नए फॉर्मेट में नहीं पूछा जा सकता. So that's why I have skipped straight to question number 3. Evaluate the disciplinary action taken by Faraz against taken by Faraz. आइए जरा हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें. मैं स्लाइड शेयर को चेंज कर रहा हूं ताकि आप इस केस स्टडी को रिव्यू कर सकें. This is question number 3. The Human Resource Department has received the following emails from Faraz, sales head, and Laiba, the sales officer. ये केस स्टडी है ही इन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट. एक डिपार्टमेंटल हेड है और दूसरा उसका सेल्स ऑफिसर है. ईमेल देखिए क्या कह रहा है और इसके अंदर बहुत से फैक्ट्स जुड़े हुए हैं. Laiba has not been able to meet targets for the past 2 years. I have given her multiple verbal intimations. ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट, इसको नोट करना है, ज़हन में रखना है कि जो वार्निंग्स दी गई हैं वो वर्बल वार्निंग्स हैं, अभी वो रिटन वार्निंग्स नहीं. I have given her multiple verbal intimations through performance appraisals that she needs to improve her performance. अब इंपॉर्टेंट ये है कि उससे वर्बल इंटीमेशन दी जा रही है, वो भी कब? परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान. नोट तलब बात ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा यहां कोई फैक्ट नहीं दिया कि इन दोनों लोगों के दरमियान आपस में कोई इंटरेक्शन भी हो रही है. The only time they interact with each other is when there's a performance appraisal. However, she never takes my words seriously and has shown no intent for improvement. Today, we lost a potential client only because she failed to send the proposal on time. I've informed her that she cannot work with me anymore. तो एक सेल्स ऑफिसर है, वो टारगेट्स मीट नहीं कर रहा और अभी उसकी वजह से रिसेंटली एक क्लाइंट जो है वो पोटेंशियल क्लाइंट, उसको भी इन्होंने लूज कर दिया. और ये शख्स ये कह रहा है कि मैंने इस शख्स को बार बार कहा है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करो, लेकिन वो मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुनती. सो अल्टीमेटली मैंने उसे अब ये कहा है कि आई डोंट नीड यू. Now let's see what is the reply by Laiba. This morning, Faraz called to tell that he is dismissing me from the job. I know Faraz does not like me, as it is implied from his actions that he likes to work with young people and finds aged staff low on motivation. किसी किस्म की बायसनेस हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. वो ये समझती है कि उसको इसलिए शिकार किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है बिकॉज वो यंग लोगों के साथ काम करना चाहता है, एजेड लोगों के साथ नहीं. It was reflected in annual performance appraisal interviews wherein
he mostly talked about my weakness and failures during the year and ended the interviews with giving me low performance rating. वो कहती है कि ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि एनुअल परफॉर्मेंस में वो सिर्फ बात करता है उसके मुतालिक उसकी वीकनेसेस और फेलियर। एक शख्स चाहे लाख बुरा हो, कहीं ना कहीं उसमें कोई पॉजिटिव तो चीज होगी, उसका जिक्र नहीं करता, वो सिर्फ जिक्र कर रहा है वहां पर, तो वो कर रहा है उसके फेलियर और वीकनेस की। During the year ended the interviews with giving me low performance ratings. Unfortunately, that is all formal interaction we ever had in past 2 years. बहुत important factor. वो कहती है जी मेरी और इस सीनियर की मुलाकात सारे साल में एंड पे जाके कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल पर ही होती है। मेरा काम सही नहीं है मुझे साल के आखिर में पता चलता है, साल के दौरान क्यों नहीं पता चलता? मुझे ये क्यों नहीं गाइड किया जाता साल के दौरान? Why I am performing? Where should I improve? What should I do to improve my performance? वो कह रही है the only interaction I get from my senior is only when we are going through this performance appraisal. I always try to put in my best efforts. I consider this as unjust dismissal and would like to hear from senior management or else. कि जी मेरी बात सीनियर मैनेजमेंट सुनती है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? आई विल सीक लीगल एडवाइस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अब सूरत हाल आपके सामने है, एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट के काम से खुश नहीं है, उसने बहुत दफा तनबीह की उसको, लेकिन तनबीह की सिर्फ साल के आखिर में जाके परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और उसमें भी सिर्फ उसकी नेगेटिव्स बताए गए, किसी चीज को और डिस्कस नहीं किया गया। अब देखिए सवाल हमें क्या कहता है। लेट मी गो बैक टू माय फाइल शेयर। सवाल कहता है evaluate the disciplinary action taken by Faraz, suggest other disciplinary alternatives that Faraz could have considered before dismissing Ryan। evaluate करो कि वो सही थे या गलत। आइए देखते हैं। बात सारी ये है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं बेटा, उसमें मैनेजमेंट को हमेशा जहन में ये रखना चाहिए कि उनका पर्पस क्या है। क्या इसका पर्पस सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज करना है, या फिर उसका पर्पस है टू गाइड द एम्प्लॉइज हाउ टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। द appraisal process has to be constructive. लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर लाइबा कॉन्टिन्यूसली पुअर परफॉर्मेंस कर रही है और उसको चेक नहीं किया जाता, तो तब भी दूसरों को ये मैसेज जाएगा कि शायद दे कैन गेट अवे विद लो परफॉर्मेंस। तो देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो होनी चाहिए और वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। दूसरी तरफ हमें ये कहा गया कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें वो एक रेगुलर फीचर होना चाहिए, उसका मकसद कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसका मकसद एम्प्लॉइज को पनिश करना नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये कहा गया कि जो लो परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरी है, स्पेशली अगर एक क्लाइंट लूज कर लिया है तो दूसरों को कहीं ये प्रेसिडेंट या मैसेज नहीं जाना चाहिए कि दे कैन हैव पुअर रिजल्ट्स एंड स्टिल सर्वाइव इन द कंपनी। लेकिन हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को वैल्यूएट कर रहे हैं कि शायद वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये नहीं बता रहा है कि परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे करना है। हम उसको वैल्यूएट कर रहे हैं। दूसरा, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ये इंडिविजुअल है उसको ये भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पुअर परफॉर्मेंस एंड ही कैन गेट अवे फ्रॉम द थिंग्स। आखिर में कंक्लूजन ये है कि जो डिसमिसल है इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड एट द लास्ट रिजॉर्ट। अगर
वो जो प्रोग्रेसिव अप्रेजल सिस्टम्स है, करेक्शन डिसिप्लिनरी सिस्टम्स है, अगर वो ग्रेजुअली उस शख्स में तब्दीली नहीं लाते, then dismissal should be used as a last resort. तो बेटा ये तो हमने उसका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको इवैल्यूएट किया। उसके पास क्या और ऑप्शंस थी, यही क्वेश्चन था। देखिए यहां पर, suggest other disciplinary alternatives that Faraz could have considered before dismissing Labour. देखिए उसने अभी सिर्फ पहला स्टेप किया था और वो क्या था, रिटन वार्निंग। उसके बाद दूसरा क्या है, he should issue a written warning, make it little more formal. Verbal warning are just informal. दूसरी इसके पास ऑप्शन क्या थी, सस्पेंशन विदाउट पे या फिर रिडक्शन ऑफ पे, किसी तरह से उसे एक फाइनेंशियल पिंच देना, उसे थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता विदाउट पे, या फिर उसकी करंट पे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है, या तीसरी उसके पास ऑप्शन थी डिमोशन टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। This dismissal should have been used as the last resort. तो आपके पास यहां पर एक्चुअली एक लेसन्स टू लर्न आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या ग्रेजुअल सिस्टम है डिसिप्लिनरी। दिस आर द लेसन्स टू लर्न। ग्रेजुअली डिसिप्लिन सिस्टम क्या, पहले वर्बल वार्निंग दो, फिर रिटन वार्निंग दो, फिर किसी तरह से एक फाइनेंशियल पिंच दो, या फिर उसको मैनेजरियल लेवल में डिमोट करो, और अगर फिर भी बात नहीं चलती, देन नेचुरली यू हैव टू रिजॉर्ट टू डिसमिसल एज अ फाइनल रिजॉर्ट। बेटा दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां हमें कहा गया एवेल्युएट करो डिसिप्लिनरी एक्शन को और सजेस्ट करो कि और क्या डिसिप्लिनरी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद थे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ लाइवर, suggest improvement for future performance appraisals. अब शॉर्टकमिंग्स क्या है? शॉर्टकमिंग पहले ये है कि इस सारे सिनेरियो से हमें ये लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक इवेंट बन गया है फॉर क्रिटिसिज्म। जब मैं बैंक में था तो वहां एम्प्लॉइज की साल के बाद एक अप्रेजल की जाती थी जिसे ACR कहा जाता है, ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हम उसे मजाहन कहते थे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज। बात यह है कि बहुत दफा अप्रेजल सिस्टम जो है वो सिर्फ एक फोरम बन जाता है टू क्रिटिसाइज अदर्स। वो कंस्ट्रक्टिव नहीं रहता, वो ये नहीं करता कि यार अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो कोई बात नहीं, या हम आपकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करेंगे, हम और तरीके इख्तियार कर लेंगे, लेकिन वी शुड नॉट बी जस्ट क्रिटिसाइजिंग ऑन द वे। तो पहला जो हमें शॉर्टकमिंग नजर आ रही है कि ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है, इसमें एक क्रिटिसिज्म का एलिमेंट सिर्फ मौजूद है। दूसरा, it appears to be only one-sided. Faraz is telling everyone that Laiba's performance is not correct. हमें कहीं नहीं कहा गया, बताया गया कि लाइबा का ओपिनियन क्या था। वो तो बाद में उसने डिस्मिसल के बाद ईमेल जनरेट किए। सो यहां पर इसका जो दूसरा फ्लॉ है कि ये एक वन साइडेड परफॉर्मेंस अप्रेजल है। तीसरा इसमें जो फ्लॉ है कि सारे साल हमें कोई इंटरैक्शन नजर नहीं आ रही बिटवीन फराज एंड लाइबा। होना ये चाहिए कि बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, ताकि हम उनको प्रोग्रेसिवली बताते रहें कहां पर वो गलती कर रहे हैं, कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हैं, उनको एक एक्शन प्लान दें हाउ टू इंप्रूव, ना कि साल के आखिर में परफॉर्मेंस अप्रेजल करें और वो भी क्रिटिसिज्म। एक और चीज जो यहां पर हम कर सकते हैं, इसको वैल्यूएट कर रहे हैं, दैट इज जो अप्रेजर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनकी तो ट्रेनिंग करनी है, लेकिन जो अप्रेजर्स हैं जिन्होंने लोगों की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है उनकी भी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि वो एक जस्टिफाइड और फैक्चुअल असेसमेंट्स करें और कहीं पर भी वो बायस ना हो, वो एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रेजल्स करें। हमें यहां पर ये लग रहा है कि जो अप्रेजल हो रही है वो एज की बुनियाद पर हो रही है। जैसे उसने वाज़े लिखा कि आई नो व्हाई फराज डजंट लाइक मी, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन यंग एंड द ओल्ड। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि उस सिस्टम में क्या खराबी थी। पहला हमने कहा कि इट वाज जस्ट बिकम एज अ क्रिटिसिज्म ओकेजन। दूसरा हमने कहा इट इज जस्ट वन साइडेड। तीसरा हमने यहां पर यह कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू इंडिविजुअल्स दिस टाइम। Now, तीसरा हम जो आखिरी हमने यहां पर यह कहा कि सिर्फ वर्बल वार्निंग्स इशू की जा रही। अब वर्बल वार्निंग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आज हम इसकी कोई इंक्वायरी भी करना चाहें कि किसने क्या किया है, सिर्फ वर्बल रिकॉर्ड पर इसको जज करना बहुत डिफिकल्ट हो। यू गॉट टू हैव द फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। तो यहां बेटा जो हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अप्रेजल सिस्टम में खराबी है, एक तो ये इवेंट बन गया सिर्फ क्रिटिसिज्म का, दूसरा ये वन साइडेड हो गया, तीसरा हमने ये कहा कि देयर वाज नो रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन द अप्रेजर एंड द अप्रेजी। ये प्रोसेस बड़ा फ्रीक्वेंट होना चाहिए। चौथा हमने यहां पर यह कहा कि लग रहा है कि यहां पर बायस्ड अप्रेजल्स हो रही हैं एज की बुनियाद पर। तो अप्रेजर्स की भी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाउ कैन दे डू एन ऑब्जेक्टिव एंड फोकस्ड फैक्चुअल अप्रेजल। और आखिरी हमने यहां पर यह कहा कि सिर्फ वर्बल वार्निंग्स नहीं होनी चाहिए, हमारे पास फॉर्मल रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो भी टारगेट्स दिए जाए वो रिटर्न होने चाहिए, जो भी हमारी उनसे फाइंडिंग्स हैं वो रिटर्न होनी चाहिए, जो भी हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं वो रिटर्न होने चाहिए। तो बेटा यहां पर ये सवाल था, आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ लाइबा, सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो हमारे पास 2 मार्क्स थे, 0.5 ईच ऑफ द शॉर्टकमिंग्स, और 4 मार्क्स अवेलेबल थे फॉर सजेशंस। यहां पर आप देखिए वर्ब यूज हो रहा है आइडेंटिफाई। ये हम 3 दिनों से कह रहे हैं कि जब भी आइडेंटिफाई का वर्ब यूज हो, सो दैट मींस इट इज 0.5 ईच। 0.5 each, we have to assess whatever the marks, that many points we have to write down. अब आइए इसका अगला हिस्सा, recommend the disciplinary process that senior management may follow to offer fair trial to LIBA. अब उसने यही कहा है कि जी सीनियर मैनेजमेंट मेरी बात सुने, नहीं तो फिर मैं लीगल एडवाइस लेकर जो भी मेरे पास है जो कर सकती हूँ उस तरफ जाऊंगी। तो ये कह रहा है कि वो फ्री ट्रायल के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसेस में हमारे पास क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। एक फ्री ट्रायल में सबसे पहला चीज जरूरी है, एस्टैब्लिश द फैक्ट्स ऑफ द केस। जैसे कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, यहां पर फैक्ट्स को गैदर करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि वर्बल वार्निंग्स थी, कैसे पता चलेगा क्या खराबी हुई, क्या कहा गया था। तो पहला ये है कि हमारे पास एक फैक्ट्स को हम एस्टेब्लिश करेंगे। देन अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए कि ये वाकई एक डिसिप्लिनरी केस बनता है, तो हम उस शख्स को एक रिटन नोटिस इशू करें और उस रिटन नोटिस में बड़ा क्लियरली लिखें कि हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं, और उसको अपॉर्चुनिटी दें कि जी आप हमें इस रिटन नोटिस का जवाब दें।
इसके बाद तीसरी चीज ये है कि हम उसे वक्त दें कि वो प्रिपेयर हो और उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमारे सवालों का जवाब दे सके। फिर उसके बाद जो भी मैनेजमेंट की डिसीजन हो वो हम राइटिंग में कम्युनिकेट करें टू द कंसर्न पर्सन, और अगर अभी भी वो शख्स सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम उसे दोबारा एक राइट दें टू अपील। तो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट अगर कोई शख्स जाना चाहता है और वो उसका ट्रायल पे जाना चाहता है तो फिर उसके पास क्या अच्छा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। फैक्ट्स को गैदर करो, उसके बाद उसको एक रिटन नोटिस सर्व करो, उन फैक्ट्स की बेसिस पर इंटीमेट करो व्हाट आर द फैक्ट फाइंडिंग्स, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। और पॉइंट नंबर 3 में प्रिपेयर करने के बाद उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। फिर whatever is the decision of management, it should be written down and communicated to that person. और अगर वो तब भी satisfied नहीं है तो फिर हम अब उसे एक राइट दें फॉर द अपील। So we have just covered question number 3, which is from HR area. और जैसे मैंने कल भी आपको बताया था और 2 दिन से हम ये फॉलो कर रहे हैं कि HR के अंदर से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। अब आइए वो चैप्टर फिर दोबारा जिसमें से लाजमी क्वेश्चन आना है, एंड दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आइए हम पहले क्वेश्चन जो सिनेरियो है उसको रिव्यू कर लें कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। Gamelty Limited, GIL, is the market leader in the video games industry. It has introduced the slickest video game console that supports high-end graphics, online video streaming services, giving unique experience to users. तो वो एक product launch कर रही है which seems to be differentiated, very well differentiated. The console is patented. Now, when we get the patent rights, that means our competitors cannot go into that similar product. ये prevent करता है competitors from imitating the unique design and the features. तो यहां हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी हमने करंट मार्केट स्ट्रेटेजी को भी देखना है। हमने देखा कि एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, उसके पास पेटेंट्स भी हैं और वो पेटेंट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते। जो कंपनी है इट इज एंजॉयिंग हाई प्रॉफिट्स। सो GIL is enjoying high profit margins by selling console as an exclusive brand to its targeted high-end customers through celebrities' endorsements and positive word of mouth. Customer make purchases through GIL's high-tech website or its dedicated flagship stores, wherein customers can have tangible experience before buying console. अब कंपनी हाई प्रॉफिट्स में है, प्रोडक्ट अभी अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में है और बड़ी हैवी प्रमोशंस हैं प्रोडक्ट्स की और अपनी ब्रांडिंग के लिए वो एंडोर्समेंट्स हासिल कर रही हैं फ्रॉम द सेलिब्रिटीज। जो सेल है वो हो रही है कंपनी की वेबसाइट से या उसके जो डेडिकेटेड फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वहां से वो अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। Third paragraph. Sorry, I should have brought the case study. Let me bring that. The third paragraph, the patent on console is expiring in a year's time. अब कंपनी के साथ इश्यूज अब शुरू होंगे कि जब पेटेंट्स हट जाते हैं तो फिर आपके जो कंपेटिटर्स हैं उन्हें एक जगह मिल जाती है to imitate the unique features. The management has decided that after the expiry of patent,
it would continue offering console to existing customer base by using the current marketing mix strategy. वो ये कह रहे हैं कि जब ये पेटेंट्स खत्म हो जाएंगे तो जो इस वक्त हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, वो जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट प्रमोशन, हम उसी को फॉलो करेंगे. However, to counter competitors and meet large untapped market of middle and low end potential customers, a standard and economical console variant would also be introduced. वो ये कह रहे हैं कि यहां तो हमारे वो पेटेंट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन कंपेटिटर्स को काउंटर करने के लिए हम एक लो एंड कस्टमर के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड और इकोनॉमिकल वेरिएंट होगा हमारे इस हाई टेक वेरिएंट का. अब हमारे पास सारे फैक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए. अब हम देखते हैं इसका सवाल क्या मांग रहा है. पार्ट ए इस हमसे डिमांड कर रहा है, by using 4 P's of marketing mix, explain the existing marketing strategy of JIL. 4 है तो 4 P's, so बड़े सीधा सा है, it is 1.5 marks. और verb यूज किया गया है explain, तो 1.5 में से 0.5 identification के हैं, and 1 mark will be for good explanation of the marketing piece. आइए देखते हैं what is the product strategy. अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था इसकी जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, और वो अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रही है यूजिंग यूनिक डिजाइन्स, पैकेजिंग एंड फीचर्स. और क्योंकि इसके पास पेटेंट राइट्स हैं, दोज आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. सिंपल. इस 1.5 के लिए दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन. इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी इज एंजॉइंग वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन्स. प्रोडक्ट अपनी इनिशियल स्टेज में है और हाई प्रॉफिट्स गेन कर रही है. आपको याद होगा हमने एक टर्म कल या परसों डिस्कस की थी, एंड दैट इज प्राइस स्किमिंग. कि आप इनिशियल पीरियड में जब आपका भी कंपेटिटर नहीं होता तो आप हाई प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को बेचते हो, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं, कस्टमर को प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं है और वो वैल्यू एडिशन को सही नहीं समझ रहा, और वो एक हाई प्राइस देने के लिए तैयार होता है. अब आइए इसकी प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी. बहुत क्लियर अल्फाज में हमें बताया गया है कि इसकी प्लेसमेंट है कंपनी वेबसाइट से अपनी प्रोडक्ट को बेच रही है, और दूसरा उसको बेच रही है अपने फ्लैगशिप स्टोर से. उन फ्लैगशिप स्टोर्स पे फीचर है कि कस्टमर जो है वो एक रियल एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट की एक रियल फील हासिल करता है. तो देखिए, हमने तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है, कोई इवैल्यूएशन नहीं करनी. प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या है? अगेन वी आर यूजिंग अ पुल स्ट्रेटेजी. हम बड़ी हैवी एडवर्टाइजमेंट्स उसकी कर रहे हैं, एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं, यूजिंग सेलिब्रिटीज, वर्ड ऑफ माउथ है, और हम कस्टमर को पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. तो बहुत क्लियरली अब हमारे पास इसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी आ गई, जिसमें हमने प्रोडक्ट का बताया डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, प्राइस का बताया आइडेंटिफिकेशन में कि प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी है, और हाई प्राइस कस्टमर हाई देने के लिए तैयार भी है और हाई प्रॉफिट्स भी वो गेन कर रहे हैं. दूसरा फिर हमने कहा प्लेसमेंट इसकी कहां से हो रही है. देन यू हैव द प्रमोशन स्ट्रेटेजी विच इज द पुल स्ट्रेटेजी. और ये आप अब सीख चुके हैं कि जब भी हम प्रमोशन पर आते हैं तो हम पुल और पुश स्ट्रेटेजी के दरमियान डिस्कशन कर रहे होते हैं. अब आइए पार्ट बी. Evaluate the management decision to continue the existing marketing strategy for high-end customers after the expiry of the patent. कह रहे मैनेजमेंट के इस डिसीजन को evaluate करो कि वो जो हाई-एंड कस्टमर्स है पेटेंट के बाद क्या हमें ये एग्जिस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए. आइए इसको evaluate करते हैं.
देखिए, पहला हमारा ये पॉइंट ये है कि जो जीएल का कस्टमर है, अगर उसने इसी स्ट्रेटेजी से सक्सेसफुल होना है तो फिर कुछ चीजें असेंशियल होंगी। देखिए, हम अपनी इस चीज को वैल्यूएट कर रहे हैं, क्या ये करंट स्ट्रेटेजी उन्हें यूज करनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इस स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उन्हें कुछ असेंशियल्स हैं जो करने पड़ेंगे। और पहला असेंशियल ये है, दे मस्ट डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी। क्योंकि जब पेटेंट हट जाएंगे तो वो लो कॉस्ट वेरिएंट्स मार्केट में मौजूद हो, और अगर कस्टमर लॉयल्टी ना हुई तो there is every chance that the customer will switch over to the low cost variants once the patents are removed. दूसरा ये है कि हमें पेटेंट के बाद भी बहुत क्लियरली अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम आवर कंपेटिटर्स, और इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूसली उसमें यूनिक फीचर्स को ऐड करना है। ये याद रखिए, अगर हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लाजमी तौर पर उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि वो जो लो कॉस्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं हम उस अपनी प्रोडक्ट को उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड रखें। हमारी स्ट्रेटेजी अभी भी डिफरेंशिएशन है, तो हमें डिफरेंशिएशन लानी होगी। तो दो चीजें हम यहां पर कह रहे हैं असेंशियल हैं अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केटिंग पीस के साथ सर्वाइव करना चाहते हो। पहला तो कस्टमर लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है ताकि लो कॉस्ट वेरिएंट्स पर लोग शिफ्ट ना करें। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएट करते चले जाओ ताकि आपकी प्रोडक्ट उन लो कॉस्ट वेरिएंट से डिफरेंशिएटेड नजर आए। अब आइए इसके पार्ट सी पर, recommend the marketing strategy for standard and economical console variant। अब ये लफ्ज देखिए यहां यूज हुआ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और बाज दफा एक खामखा का एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि यार पता नहीं, कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज है जो हमें लिखने के लिए कह दी गई है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑलवेज रेफर्स टू योर मार्केटिंग पीस। हमने करंट मार्केटिंग पीस तो डिस्कस किया, अब वो कह रहा है कि रिकमेंड करो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी फॉर द लो कॉस्ट वेरिएंट। तो लो कॉस्ट वेरिएंट के लिए हम कह रहे हैं कि अब हमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना होगा, नॉट द लो कॉस्ट बल्कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। और हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हम अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड के एक्सपीरियंस को यूज करके इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल्स के थ्रू एक कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे पास वो बेसिक कैपेबिलिटीज हैं जिसमें हम कॉस्ट लीडरशिप को डिटरमिन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में हमने ये कहा कि हमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाहिए। प्राइस में हमने ये कहा कि हमें मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए था प्राइस स्किमिंग, यहां उसके बिल्कुल बरक्स है, दैट इज टू एंटर द मार्केट एट अ लो प्राइस, ताकि हम जल्दी से कस्टमर की अटेंशन हासिल कर सकें और एक मार्केट शेयर एक्वायर कर सकें। इट्स अ मोर टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, जहां पर हम सिर्फ बॉटम लाइन फिगर की तरफ देख रहे होते हैं और ग्रेटर मार्केट शेयर उसकी तरफ नहीं देख रहे होते। Then as far as placement is concerned, हमें यहां पर जो अपने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट था उसके मुकाबले में इसकी प्लेसमेंट को डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कस्टमर सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इट मे बी some retail outlets, but certainly this placement has to be different from our that unique product जो बिकती थी वेबसाइट से, जो बिकती थी हमारे फ्लैगशिप स्टोर से। और प्रमोशन में हम कह रहे हैं पुश स्ट्रेटेजी।
अब बेटा तवज्जो तलब बात यहां पर यह है कि किस तरह इस केस स्टडी को डिजाइन किया गया है कि सब चीजें बिल्कुल रिवर्स हो गई। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी उसमें थी डिफरेंशिएशन और यहां पर लाई गई कॉस्ट लीडरशिप। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एग्जामिनर आपके पूरे इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। वहां पर प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी थी, यहां पर लाई गई मार्केट पेनिट्रेशन। वहां पर बड़ी एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट थी, यहां हमने कहा कि इसको रिटेल आउटलेट से ले जाओ। वहां पर हमारे पास अगर पुश स्ट्रेटेजी थी तो यहां पर है पुश स्ट्रेटेजी कि उन रिटेल आउटलेट्स को आप इंसेंटिव्स दो, उन्हें बेहतर क्रेडिट्स दो, उन्हें बेहतर टर्म्स दो ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को कैरी करें। तो देखिए अब दोनों चीजें यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी और जो हम लॉन्च करना चाह रहे हैं उनमें दोनों में फर्क है। और यही मैं आपसे चाहता हूं, यहां पर लर्निंग आउटकम ये है कि जब इस तरह का कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें दो प्रोडक्ट्स की पूछी जाए तो ज्यादातर वो दोनों उसके ऑपोजिट होती है और हमें सोच का प्रोसेस शुरू ही वहां से करना चाहिए। इज इट टोटली ऑपोजिट टू माई दैट प्रोडक्ट? यूजुअली इट इज ऑलवेज द ऑपोजिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। Now, this is question number 5 on ethical resolutions. आइए पहले हम केस स्टडी को रिव्यू कर लेते हैं which is on ethical resolutions। और मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि जो ethical resolutions की बात होती है, कल भी और उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए, it is more of a common sense to how to handle that situation. The only thing that you need to know the models or the frameworks which you want to use. जैसे वहां पर हमारे पास पहले दिन एक एथिकल रेजोल्यूशन मॉडल था, आज हमें कहा जा रहा है यहां पर मिरर टेस्ट एक है जो हम यूज करेंगे एक फ्रेमवर्क। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। लेट मी गेट द केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5। Blue Ocean, a marketing agency in Karachi, offers digital marketing solutions. There has been a considerable change in the consumer behavior post-COVID-19. Therefore, the board has requested Huzaifa, the marketing head, to find and propose a training program on the subject. क्या जो कंज्यूमर जिनको हम बेचते थे ये डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन, उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, लिहाजा हमें अपने जो करंट स्टाफ है उसको स्पेशल ट्रेनिंग की तरफ भेजना चाहिए। He is also authorized to nominate 3 candidates who would accompany him for that training program. So he has to go on a training program, and with him, he's been approved 3 other candidates to go with him. Huzaifa, who is eager to visit Dubai Expo 2020, got excited and started looking for possible training programs in Dubai only, and finally found one there. अब वो दुबई में कोई एक्सपो हो रहा है, उसको वो देखने जा रहा चाहता है। उसने कहा कि यार कंपनी के खर्चे पे जाऊं, लिहाजा उसने वहां पर ढूंढना शुरू कर दिया, is somebody offering such program. However, he also knows that similar program at much lower pricing are also offered in Karachi. उसे ये पता है कि दुबई का कोर्स तो ठीक है, उसकी अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट है, तो ये पता है कि अगर कराची है तो यहाँ पर कुछ कम हैं जो कि ये बहुत कम कॉस्ट पर उसे ऑफर कर रहा है। आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एथिकल इशू हियर। ही इज डूइंग समथिंग फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट and ignoring the interest of the organization. What is required? Carry out a mirror test of Huzaifa. अब बेटा पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये मिरर टेस्ट है क्या। मिरर टेस्ट है that you stand in front, that you have done some act, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो मेरा एक्ट है वो एथिकल था या नहीं। So what do? You stand in front of the mirror and naturally उस मिरर में आपको इमेज अपना ही नजर आएगा, लेकिन
यहां हम ये कह रहे हैं कि हम ये तस्वर करें कि वो जो सामने मिरर नजर आ रहा है वो हम नहीं है. It's somebody else who has done the same act which you have done. And now ask yourself few questions. Ask yourself few questions. Ask that person some questions. वो शख्स जो आपको मिरर में नजर आ रहा है जो एक्चुअली आप ही हैं, और उससे चंद सवालात पूछो और उससे फिर ये जज करो कि आपका एक्ट एथिकल था या नहीं. मैं फिर बोलता हूं, मिरर टेस्ट है कि you have done some act and you want to determine whether it was ethical or not. So you stand in front of the mirror. अब ये stand in front of the mirror ये practical नहीं है, ये metaphor है कि हम assume कर रहे हैं कि we are standing in front of the mirror and the image that we see is, we presume, is another person. And we ask certain questions. Now what are those questions? पहला question हम उससे ये पूछते हैं, the act that you have done, is it legal? अगर उसका जवाब आए नहीं तो वहीं बात सॉल्व होगी कि it was unethical. लेकिन अगर उसका जवाब आए कि yes it was legal, so okay, move on to the second. सेकंड में ये पूछा जाता है कि सेकंड में हम उससे ये पूछ रहे हैं, what will the people think about it? जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो इस एक्ट को कैसे लेंगे? Will they feel good about it? और तीसरा सवाल हमसे ये पूछेंगे, is it ethically correct? तो तीन सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं. किससे पूछ रहे हैं? That image in the mirror, which actually you are. पहला सवाल मैंने उससे ये पूछा, is it legal? दूसरा सवाल मैंने ये पूछा, that what will the other people think about my seniors, my subordinates, my colleagues, my peers, my family members, my friends, what they will think about it. और तीसरा सवाल हमने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा, is it ethical? ये तीन सवाल पूछना और उसकी बेसिस पर वो जो इमेज हम देख रहे हैं एक्चुअली इसको डिटरमिन करना कि ये एक्ट एथिकल था या नहीं, दिस बेटा इज कॉल्ड एज अ मिरर टेस्ट. हमारे सामने यहाँ एक सिचुएशन ये है that Josefa has been given an approval to go for a training program and with him take 3 other candidates. अब उस शख्स ने इसका फायदा उठाया और उसने कहा जी कि दुबई एक्सपो हो रही है, why don't I find somebody offering the same course in Dubai? तो एक तीर से दो काम हो जाएंगे, ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मैं एक्सपो भी देख लूंगा. हमने ये डिटरमिन करना है मेरे टेस्ट से मैं यहाँ क्या क्या कैरी आउट. तो पहला है, is proposing a Dubai for training program legal? Naturally, it is legal. There's no illegality in suggesting a program at Dubai. Then the second question is, what will the people think about it, especially the key stakeholders? मेरे जो board of directors हैं, मेरे जो colleagues हैं, मेरे जो family members हैं, what will they consider that I wanted to fulfill my personal desire? और मैंने इस पर्सनल डिजायर को फुलफिल करते हुए कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको पशेपुस्त डाल दिया और उसको इग्नोर कर दिया. हो सकता है मुझे यही जवाब आ जाए कि जी द अदर पीपल विल नॉट फील गुड अबाउट इट. और तीसरा ये है कि वो इज इट एथिकली करेक्ट. So actually you ask yourself these 3 questions and then you determine whether your act was ethical or not. Now, तो बेटा आज हमने इसका ये आधा पेपर कवर कर लिया है, that is winter 2021. और मैं जो ये BMS की जो स्कीम थी इसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं ले रहा, कंसिडरिंग कि अब उस फॉर्मेट के जो पेपर है वो अब नहीं आ रहा.
अब गिव इट अ स्टार्ट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहां पर रीड आउट करूंगा, एक थॉट प्रोसेस के साथ छोड़ूंगा ताकि कल आते ही हम इसको डिस्कस कर सकें। दिस क्वेश्चन इज ऑन CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पिछले 2 अटेम्प्ट से एथिकल रेजोल्यूशंस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। एवरी पॉसिबिलिटी कि वो भी मिक्स कर दे, एथिकल रेजोल्यूशन को जरूर ले, लेकिन वो CSR और एथिक्स में से इस बार मेरे ख्याल है कि वो जरूर जाएगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। Aspire Textile Mill Limited has nationwide operations. It is considering expanding its customer base in European market. The management has approached potential customer there who has requested ATM, that is Aspire Textile Mills, to share its corporate social responsibility policy and related reporting. So it is planning to expand into European market, और मैनेजमेंट ने अप्रोच किया है एक पोटेंशियल कस्टमर को, एक पोटेंशियल कस्टमर ने मैनेजमेंट को अप्रोच किया है कि जी मुझे आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिपोर्ट करें। बिकॉज ये याद रखिए, एनी नेग्लिजेंस इन द एथिकल इश्यूज और CSR वो सिर्फ उस कंपनी को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि जो भी उस कंपनी के साथ ट्रेड रिलेशंस में है उनको भी अफेक्ट करते हैं। So there is nothing wrong when I want to enter into some sort of a trade relationship with an organization. I first ask, show me your CSR. Let me see what you are doing is socially responsible. Is it ethically responsible? And only then we enter into an trade relationship with others. ATM has no formal CSR policy in place. ATM has no formal CSR policy in place. Some random CSR activities are performed due to local pressure groups that have questioned ATM's increasing environmental footprint and lack of social contributions. वो ये बता रहा है कि उसकी कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं है, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो एक कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके प्रेशर की बेसिस पर वो काम कर देते हैं। और continuously they are questioned for 2 things. One is environmental footprints. Environmental footprint कहते हैं the amount of carbon dioxide released into our environment. Your operations, when they generate energy, they interact with oxygen and they convert that into carbon dioxide. So carbon footprint is an environmental issue. It is the amount of carbon dioxide released into the environment. Now, the management is considering adopting formal CSR policy and it's reporting to stakeholders. However, one of the board members has shown concern of likely increase in cost. Naturally, जब आपने CSR policy को implement करना होता है, तो उसके लिए आपको कुछ investments करनी पड़ती हैं। अब यहां तक मैंने इस केस स्टडी को आपको रिवील कर दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको यहां से मैं लाकर, मैंने इसीलिए इसका स्टार्टअप दे दिया है ताकि कल आकर मैं यहीं से इसको टेकअप करूंगा, और फिर कल हम इस में से जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसको लेंगे, और जो समर 21 के BMS के पेपर्स हैं रेलेवेंट उसको लेंगे। और फिर जैसे मैंने आपसे कल कहा था, बेटा गौर से सुनिएगा, आई विल बी गोइंग थ्रू कि पिछली 4-5 अटेम्प्ट्स में किस एरियाज को टारगेट किया गया था, और इस टर्म में मेरे मुताबिक कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज, ऑल्दो
I strongly discourage spotting. This is just an assessment. It does not mean that we should religiously follow it and we don't do the other thing. मैंने पहले दिन कहा था, the success of SPM realized that we should not do spotting. And I'm just showing the probability. Plus, कल मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, what are the different verbs used and how to score marks, what to do when you are addressed that verb. Like we have been talking about identification, we have been talking about explanation. With that, I will close off my session here. And I'll say goodbye to you, and inshallah, we'll take up from here tomorrow. Thank you, sir. Welcome to. Dear students, we have completed the third of 4 exam focus revision sessions of CFAP 3 strategy and performance measurement. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. CFAP 3 strategy and performance measurement session will be conducted tomorrow on May 11, 2023 from 6 p.m. to 9:30 p.m. Students, there is a special announcement for CFAP 5 students. Due to some unavoidable circumstances, the session of CFAP 5 text planning and practices, which was planned on Thursday, May 11, 2023 from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted now from 10 a.m. to 5 p.m. on Wednesday, May 17, 2023. Till then, take care. Allah Hafiz.